Yeah, friends, a very good evening to each one of you out there. Friends, Tally is one such software, rather an accounting package we all had been using for a really long time. Tally itself has emerged, and there are latest versions of Tally. But then, as it is rightly said, that as the Tally has emerged, we chartered accountants have not been used to the new features that are getting added to the Tally. And I think it is the right time wherein we understand the features of Tally and basically not just understand, but also put to use the small features that are there, which can actually help our work to be getting more simplified. So I think this is the right kind of session wherein we have two wonderful speakers in the form of CA Nivedita Dikhe and CA Pankaj Deshpande ji, our very own from Nagpur. And I think this is the right occasion for the Nagpur branch to host this program, wherein the tax audit dates are near to say we have the dates approaching very soon. And with this, I wish to request the chairman of the Nagpur branch, C. Saket Bagadia, to please come forward and share his welcome address with you all. Over to you, Saket, sir. Thank you so much, Jitin. A very warm good evening to all of you who are present here. A lot of time after, but this is the time when everybody is really busy in all their audits. And we've just found it appropriate that this exploring Tally Prime for audit, this was the most important topic that is essential, because time is less and much of the work needs to be completed in a short span of time. I'm extremely thankful and I really acknowledge C. Pankaj Deshpande ji, the core faculty for this 2-day workshop on exploring Tally Prime for audit, for sparing his valuable time, along with C. Nivedita Dikhe and C. Dheeraj Talmale for really agreeing to be part of this 2-day workshop for training, for giving hands-on training to the members, how to use this Tally Prime effectively for the purpose of conducting the audit. There are so many things. When I was having a word with Pankaj sir, he told that there are so many things which we really don't use while we are using the Tally. These things will really help us in doing our audit in a much more composed manner. And that was the reason he said, sir, isse acha mauka nahi ho sakta hai ki wherein at this juncture, if we get tips and tricks to really use the Tally to the maximum benefit so that our audit efficiency can be increased, definitely yes. Thanks a lot, Pankaj sir, for your special efforts. I can share with you friends that yesterday itself, and he has fractured his hand, but even then he's in great pain. But then he said, nahi sir, commitment hai and the people have registered, so I would be here. So I really compliment and thank Pankaj sir for his spirit to really take this session forward and give hands-on training to all the participants over here so that they can get the maximum professional edge while they are conducting their audits. Thank you so much, Pankaj sir. Welcome Nivedita on her first maiden lecture. She is recently qualified, and for young chartered accountant members, Nagpur branch always tries to provide the best of the platform. I recognize the presence of Vice Chairman of Nagpur branch, C. Jiten Saglani, who is coordinating the session, C. Akshay Gulhane, who is there for taking up the other proceedings of this section, C. Surendra Durkarji, who is also present here, and all the delegates. I welcome all of you to this 2-day workshop on Tally. About the future programs, on 21st, we are going to have a very interesting program on MDP, that is multidisciplinary partnership firms. Friends, this is going to be addressed by G. Sikhar, Central Council member. This is the new word which has come up, and everybody would be really interested in knowing the ins and outs of this MDP. So the details of the circular would be out soon. On 18th of December, that is day after tomorrow, we are going to have a cricket match with the Income Tax Department at NADT ground. I request the presence and I request all of you to please join us on the ground from morning 9 a.m. After a long gap of time, this fellowship match is being organized, and I appeal each one of you to please come and enjoy the match in large numbers. Let's try to make this Saturday a memorable one for all of us. Thank you and thank you all, as I welcome all of you to this session. Thank you so much. Yeah, thank you so much, Chairman sir. Friends, as rightly pointed out by Chairman sir, we have our own CA Pankaj Deshpande ji on this occasion, who, despite being in pain, has joined us and has been so much committed to have this session.
So to formally introduce Pankaj ji as well as CA Nivedita ji, I'll request Akshay Gulane, the treasurer of the Nagpur branch, to please come forward and do the honors. Over to you, Akshay. Thank you so much, Jiten sir. Definitely, we all know him as a tally man. CA Pankaj Deshpande sir is a chartered accountant in practice since 2002. He is qualified as an information system auditor. He is practicing in the specialized area of accounting system. He is founder partner of Ghate Deshpande and Company Chartered Accountants. He has conducted tally and account training for chartered accountants, CA students, service tax commissioners, income tax commissioners, business persons at various locations. He has conducted training on effective use of tally software for the staff of Indian Air Force as well. He has implemented the accounting system for Mumbai Metropolitan Region Development Authority, the richest local body in India. He has conducted faculty development program for ITT and advanced ITT faculties of ICAI. He has delivered various lectures at various forums and including business forums. We welcome Pankaj sir on the forum of Nagpur branch. To introduce Nivedita Dighe ma'am, she is definitely a debutant, but I don't think under the training and guidance of Pankaj sir, she is less expertise. She has done article assistant from Ghate Deshpande and Company Nagpur, as well as Joshi Apte and Company Pune. She has experience in internal audit of various companies, as well as material consumption variance report is her expertise. Accounting for businesses and finalization of accounts for income tax return is the domain. We welcome Nivedita on the forum of Nagpur branch and eagerly waiting to listen to both of you. Thank you so much. Over to you, Jiten sir. Yeah, thank you so much, Akshay. Friends, I heard it somewhere, rather this is coined that chartered accountants are not just CAs, they are committed achievers. So we have one such committed achiever because he's not just committed, he has achieved very well in tally, that is CA Pankaj Deshpande ji. And to hand over the session to him, I'll take this opportunity and request Pankaj ji to please come forward along with Nivedita ji to take over the session. Pankaj sir, over to you. Yes, thank you very much, Jiten sir. Thank you very much, Saket sir. Thank you very much, Akshay sir, for such a nice introduction. And thank you very much, Nagpur branch of ICAI, the most vibrant branch of ICAI all over India. I am associated with Nagpur branch since last more than 20 years, and I'm always enthusiastic and happy to deliver any lecture for Nagpur branch. So when Saket sir, the chairman, asked me about delivering this type of lecture, I had a talk with Jiten sir also. So I, without any hesitation, without any second thought, I said yes to this particular topic, because topic is my favorite topic, as well as the Nagpur branch is my own branch. So let us start. We will be discussing this aspect with in two parts. First is data security and second is audit tools. So audit tools and data security, these are the broad categorization of our discussion. We will be discussing these aspects in 2 days, फर्स्ट टुडे एंड सेकंड टुमारो. तो ये दो चीजों में हम डिस्कस करेंगे. मैं चाहूंगा यहाँ पे जो भी लोग नागपुर के बाहर से है वो प्लीज अपनी सिटी यहाँ पे मेंशन करें, सो दैट आई कुड नो how many of you people are out of Nagpur attending this particular program and what type of language should I use. ये मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ just type your city if you are not from Nagpur. If you are from Nagpur, no need to type anything else. चंद्रपुर ओके, बहुत बढ़िया. प्रतीक सरडा, हाँ. बैतूल MP, यवतमाल, just type the name of your city. Amravati, Krishna Agrawal. So Amravati, Yavatmal, Chandrapur is as good as Nagpur only. We consider them to be from Nagpur only. Yes, okay. RV, Wardha. Okay, it is considered to be, deemed to be in Nagpur.
So before we start today, I would like to know something. I would like to discuss upon three terms. Three terms. What are these three terms? ये तीन टर्म कौन सी है मैं आपको बताना चाहूंगा अभी. फर्स्ट टर्म इज नोइंग. व्हाट इज दिस नोइंग? ये नोइंग क्या होता है? नोइंग मीन्स नोइंग अबाउट टैली. We are discussing about tally today, so I am discussing these three terms from the angle of tally only, but by and large these three terms are applicable everywhere, anywhere. तो ये तीन टर्म्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा. फर्स्ट टर्म इज नोइंग. ऑल ऑफ यू और मोस्ट ऑफ यू आर यूजिंग टैली. यू नो अबाउट टैली. यू नो अबाउट वेराइटी ऑफ फीचर्स इन टैली. तो आपको टैली के बारे में बहुत सारी जानकारी है क्योंकि आप टैली यूज कर रहे हैं. आप आर्टिकलशिप में आपने यूज किया होगा, प्रैक्टिस में भी आप यूज कर रहे हैं, लगातार यूज कर रहे हैं. तो फिर नोइंग, तो फिर आपको पता है, आपको इसके बारे में कुछ नया बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है. सो फर्स्ट स्टेप इज नोइंग. सेकंड स्टेप, व्हाट इज द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप इज यूजिंग. तो सेकंड स्टेप इज यूजिंग क्या है? एक आधा फीचर टैली का आपको पता है, लेकिन आप उसको यूज नहीं करते हैं. तो पहला स्टेप है जानना, दूसरा स्टेप है उसका यूज करना, प्रयोग में लाना, एंड थर्ड स्टेप इज मोनेटाइजिंग. दिस इज द थर्ड स्टेप. मोनेटाइजिंग इज चार्जिंग मनी फ्रॉम क्लाइंट्स फॉर यूजिंग अ पर्टिकुलर फीचर. तो ये भी हो सकता है. तो ये तीनों स्टेप जो है, ये इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे. जो लोग टैली में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मैं उन्हें कुछ बातें ऐसी भी बताने वाला हूं जहां पे वो क्लाइंट से टैली सर्विसेज के लिए, ऑडिट सर्विसेज के लिए अलग से पैसा चार्ज कर सकते हैं. आप जो काम कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं, उसके अलावा भी आप पैसा क्लाइंट से चार्ज कर सकते हैं और क्लाइंट आपको जरूर पैसा देंगे उसका. तो तीन चीजें हैं, याद रखिए, नोइंग, यूजिंग एंड. सो वी फर्स्ट मस्ट नो द फीचर. जो फीचर है वो हमें पता होना चाहिए. दूसरा स्टेप है उसे यूज कैसे करते हैं ये हमें पता होना चाहिए, उसे यूज करना चाहिए हमने. और यूज करते समय बहुत सारी चीजें जो है वो हमें नजर ही नहीं आती है, हमारे आंखों के सामने होती है, लेकिन फिर भी हमें नजर नहीं आती है कि इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं. आज जब हम इन सारी बातों की चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जो कि आपको देखने के बाद लगेगा, अरे यार ये मैंने आज तक क्यों नहीं सोचा, ये मैंने आज तक क्यों नहीं किया, ये आप जरूर सोचेंगे. सो दीज आर द थ्री एस्पेक्ट्स, नोइंग, यूजिंग एंड मोनेटाइजिंग. नाउ आई इनवाइट सीए निवेदिता दिगे फॉर डिस्कसिंग सच मैटर्स. दो तीन मैटर, खास मैटर्स जो है, जो निवेदिता आपके साथ डिस्कस करेगी, आपको बताएगी. तो ओवर टू यू निवेदिता, जस्ट गो अहेड. एंड आफ्टर निवेदिता अगेन आई विल बी डिस्कसिंग सम मैटर्स विथ यू. Thank you so much, Jiten sir, Saket sir, and Akshay sir for the warm welcome and introduction. Thank you so much, Pankaj sir, and all the members for giving this wonderful opportunity to me. So आज हम लोग कुछ फीचर्स देखेंगे टैली के, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. जस्ट अ मिनट, आई नीड टू शेयर माय स्क्रीन. Sir, Pankaj sir, you have to discontinue sharing this. Yes, just a minute. I will have to stop the share. Stop share. Now please do it. Okay. Okay, so is my screen visible? Now it is visible. Okay, thank you sir. So आज हम लोग कुछ फीचर्स के बारे में देखेंगे जो बेसिकली सिंपल से फीचर्स है, बट बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जो आप लोगों को बहुत, हम लोगों को, सब लोगों को बहुत हेल्प कर सकते हैं टैली को यूज करने में. तो फर्स्ट फीचर जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है मॉडिफाइड मार्क्ड वाउचर्स. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे सबसे पहले एंड F11 प्रेस करेंगे. एक सेकेंड. ओके,
एक सेकेंड ना, कुछ तो भी प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, अटक रहा है स्क्रीन। ओके, सो हम लोग अभी देखेंगे मार्क्ड वाउचर्स। ठीक है, तो मार्क्ड वाउचर्स में बेसिकली हमें दिखेगा कि कौन से वाउचर्स हैव बीन रिसेंटली क्रिएटेड और मॉडिफाइड। ठीक है, तो हो सकता है कि हम लोग जब ऑडिट करें या वेरीफाई करें वाउचर्स को, तो हम लोग सारे वाउचर्स को वेरीफाई करके रख लिए। अभी आई वेंट होम, मैंने सब चेक किया, ठीक है, सब एवरीथिंग इज ऑल राइट, और सब मैंने चेक किया और मैं घर चली गई। उसके बाद किसी से तो भी गलती से या जानबूझ के हो सकता है कि कोई एरर हुआ या कुछ एडिशनल एंट्री पास हुई जो शायद नहीं होनी चाहिए थी या शायद होनी भी चाहिए थी बट पहले नहीं थी, तो वो हमें दिखेगी मार्क्ड वाउचर्स में। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है बिकॉज यहाँ पे रिसेंटली क्रिएटेड कोई वाउचर्स नहीं है या मॉडिफाइड कोई वाउचर्स नहीं है। नाउ विल सी हाउ दिस वर्क्स। तभी हम लोग गए गेटवे ऑफ टैली पे, डे बुक। यहाँ पे मैं इस एंट्री को एडिट करूंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 15,000 एंड सेव। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ये एंट्री को चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया सपोज 10,000 एंड सेव। उसके बाद मैंने एक एडिशनल एंट्री पास कर दी। ठीक है, ओके, सो विल से सैलरी की पेमेंट कर दी हम लोगों ने कैश में 5,000 रुपीज एंड सेव। अभी ये 3 एंट्रीज में से 2 ऑल्टर हुई है और एक एडिशनल एंट्री पास हुई है। अभी अगर मुझे चेक करना है कि मैंने कल जो भी देखा था उससे ज्यादा अभी यहाँ पे क्या चेंजेस हुए, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो बैक टू गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, मार्क वाउचर्स, एंड नाउ आई विल सी ऑल दीज एंट्रीज हियर। जो ये 2 एंट्रीज चेंज हुई है, ये 2 रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और सैलरी, ये एंट्री एडिशनल पास हुई है। तो नाउ आई कैन क्वेश्चन कि ये एंट्रीज अभी क्यों हुई, मतलब क्या ये जेन्युइन एंट्री है कि क्या ये कोई एरर है या तो कुछ गलती से हुआ है और व्हाट। फिर सैलरी की एंट्री भी न्यू हुई है, तो वी हैव द रिकॉर्ड ऑफ चेंज्ड और एडिशनल एंट्रीज दैट हैपन हियर। तो इस बारे में मैं आपको एक किस्सा बताना चाहती हूँ। जब मैं आर्टिकलशिप कर रही थी घाटे देशपांडे एंड कंपनी में, तो ऐसा हुआ था कि एक क्लाइंट था, उनका बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम था और अकाउंटिंग था और वो मैं कर रही थी। तो बहुत सारी एंट्रीज करके रखी थी, सब कुछ ऑलमोस्ट बहुत सारा काम हो चुका था। एंड एक दिन शाम को मैं मतलब वो कंपनी को बिना बंद किए, हमको वो यूजर आईडी एंड पासवर्ड वगैरह होते थे, तो मैं बिना बंद किए चली गई। तो आई डोंट नो दैट वाज अ लेसन टू मी और समथिंग, बट somebody changed a few entries in that. तो मुझे नेक्स्ट डे आके इमीडिएटली रियलाइज हुआ कि ये चेंज हुआ है, क्योंकि बैलेंस शीट की फिगर्स चेंज हुई, तो मुझे समझा कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो मैं पंकज सर के पास गई भी थी तुरंत कि कुछ तो भी हुआ, मैं क्या करूं अभी। एंड आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि मैंने ये फीचर यूज किया कि नहीं किया, बट उसके बाद मैंने सब चेंज किया। एक्चुअली मैंने शायद पहले सब चेंज किया और फिर पंकज सर के पास गई थी कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। बट नाउ आई रियलाइज कि अगर ये फीचर मैं तब यूज करती तो इट वुड हैव बीन एक्सट्रीमली इजी टू सी कि क्या चेंज हुआ है, क्या गलत हुआ है, क्या एडिट हुआ है, और मेरे लिए वो काम बहुत इजी हो जाता। तो ये हम सब भी कभी भी यूज कर सकते हैं, मतलब अगर ऐसा किसी के साथ ये सिचुएशन हो तो वी कैन वेरी वेल यूज दिस एंड हम लोग मॉडिफिकेशन या एडिशनल एंट्रीज को चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये मॉडिफाइड एंट्रीज है। नाउ सपोज वी हैव वेरीफाइड ऑल दीज एंड हमको पता चला कि ये सब सही है, ये सारी एंट्रीज जेन्युइन है। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली 15,000 था, सैलरी एक्चुअली 5,000 था जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, या रेंट भी एक्चुअली 10,000 था। तो हम लोग तीनों एंट्रीज को वेरीफाई करने के बाद
प्रेस करेंगे ऑल्टर आर, दैट मेक्स इट कि ये सारी एंट्रीज को एक्सेप्ट कर लिया हम लोगों ने, क्लियर ऑल मार्किंग। यहाँ पे याद करने वाली बात ये है कि एक एक एंट्री को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल द एंट्रीज टुगेदर। तो हमको वेरीफाई करना पड़ेगा सारी एंट्रीज को और उसके बाद एक्सेप्ट करना पड़ेगा सारी एंट्रीज को। तो आई विल प्रेस ऑल्ट आर एंड ये सारी एंट्रीज एक्सेप्ट हो जाएंगी। आई एम सेइंग नाउ कि सारी एंट्रीज ओके है, आई एम ओके विथ ऑल दोस, सो मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अभी एक और फीचर हम देखेंगे, एक सेकेंड, यस। तो अभी सेकंड फीचर हम देखेंगे ऑप्शनल वाउचर्स। ऑप्शनल वाउचर्स को हम सोच सकते हैं लाइक रिसाइकल बिन ऑफ टैली। हम लोगों ने कुछ तो भी बाजू में रख दिया जिसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे असर नहीं होगा, बट वो वाउचर्स वहां पे रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग अभी सपोज आई हैव अ ग्रोसरी शॉप एंड मुझे चिल्लर पैसों की बहुत जरूरत पड़ती है सपोज, एंड आई हैव गॉट 500 की 10 नोट्स, और मैंने अपने एक बंदे को बोला कि आप जाओ बैंक में और इसको चेंज करके कॉइन्स लेके आओ। तो नाउ दिस ट्रांजैक्शन आई मे नॉट एंटर इनटू टैली ना, तो मतलब ऑब्वियसली आई वोंट, क्योंकि मेरे लिए तो वो जाएगा और आधे घंटे में कॉइन्स लेके आएगा वापस। बट देन ही गोज देयर, नाउ इट हैपेंस टू बी अ सैटरडे, और सैटरडे को हाफ डे बैंक बंद हो गई, एंड ही कॉल्स मी कि अभी तो बैंक बंद हो गई और मैं बहुत दूर आ गया हूँ, मुझे अभी घर जाना है, मैं मंडे को ही कैश लेके आऊंगा आपकी। तो मुझे ये एंट्री को रिमेम्बर तो करना पड़ेगा कि मैंने इसको कैश दी हुई है। तो आई जस्ट मेक एन एंट्री, पुट इट इनटू ऑप्शनल एंड लीव इट देयर। जब मुझे वो कैश वापस आ जाएगा, आई विल डील विद इट लेटर ऑन मंडे। ठीक है, या तो दिस कैन बी यूज्ड टू चेक फ्यूचर सेल्स फोरकास्ट। अगर मैं कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, तो मैंने उस पर रिसर्च किया और मैं देख रही हूँ कि कितना सेल होगा या व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैंने एक एंट्री पास की, मैंने चेक किया कि क्या होगा इसका इम्पैक्ट, और फिर उसको ऑप्शनल में डाल दिया, बिकॉज वी हैव टू बी प्रूडेंट, वी कैन नॉट जस्ट एंटर एनी काइंड ऑफ सेल बिकॉज हमको लग रहा है कि वो सेल होगा। तो that can happen in optional vouchers। अभी हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। अभी ऑप्शनल वाउचर्स में एंटर किया, यहाँ पे कोई ऑप्शनल वाउचर नहीं है क्योंकि मैंने कोई ऑप्शनल में अभी डाला नहीं है। नाउ विल गो टू गेटवे ऑफ टैली, डे बुक। अभी सपोज ये एक्सपेंसेस को मैंने ऑप्शनल में डाल दिया, नहीं हम लोग एक सेकेंड ना, हाँ ओके, इस एंट्री को हम लोग ऑप्शनल में डालते हैं। ठीक है, ऑप्शनल में डालने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल एल। कंट्रोल एल प्रेस किया तो यहाँ पे दिख गया ऑप्शनल। अभी ये एंट्री हमको नहीं दिखेगी, जस्ट अ सेकेंड, आई शो यू इसका इम्पैक्ट क्या था पहले। ये सेल की एंट्री है, तो सेल की एंट्री है, इसका प्रॉफिट पे कुछ तो इम्पैक्ट हुआ होगा। ठीक है, हम लोग अमाउंट देखते हैं, वो अमाउंट था समथिंग 98,000 समथिंग, कुछ तो भी था। एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी। वाउचर्स, ये एंट्री थी वो। ओके, सो 94,400, उसमें से सेल का अमाउंट था 80,000। ये एंट्री को अगर मैं ऑप्शनल में डालूंगी तो इसका हमारे प्रॉफिट पे असर होगा। ठीक है, ऑप्शनल में डालूंगी मतलब इसको मैं इफेक्टिवली सेल्स में से हटा दूंगी। इसका ना तो सेल्स में इफेक्ट दिखना चाहिए ऑप्शनल में डालने के बाद, ना तो यहाँ पे उसके डेटर्स में। तो अभी हम लोगों ने प्रॉफिट की अमाउंट देखी थी, इट वाज समथिंग 1,34,000, उसमें से 80,000 कम हो जाएगा। नाउ आई एम पुटिंग इट इनटू ऑप्शनल। ठीक है, कंट्रोल एल प्रेस किया, कंट्रोल ए प्रेस किया, एंड नाउ विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हो गया प्रॉफिट कम। ठीक है, 80,000 से प्रॉफिट कम हो गया। अभी विल सी बैलेंस शीट में
एसेट्स में, सन्ड्री डेटर्स में, नागपुर डेटर्स में, टैली डेटर्स में ग्रुप था वो। तो नाउ विल सी, विनीत रिफ्लेक्टिव्स नाम था उनका। तो वी डू नॉट हैव एनीबॉडी बाय द नेम विनीत रिफ्लेक्टिव्स, क्योंकि हमने वो एंट्री ऑप्शन में डाल दी है। अभी ये सारा जो भी डेटा है दैट इज विदाउट द इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वाउचर। तो अभी हम लोगों को अगर उसको वापस लाना है, वी फाउंड आउट कि ठीक है एवरीथिंग इज ओके, वी हैव टू ऐड इट बैक। तो हम लोग वापस जाएंगे, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में, वहां पे जाएंगे ऑप्शनल वाउचर्स में। ये एंट्री जो इटैलिक्स में दिख रही है ये हमारा ऑप्शनल वाउचर था। अभी हम लोग इसको वापस कंट्रोल एल प्रेस करके इसको रेगुलर में डाल देंगे एंड सेव। अभी ये एंट्री का वापस असर दिखना चालू हो जाएगा। हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में जाके वापस से प्रॉफिट इंक्रीज हो गया 80,000 से, एंड बैलेंस शीट में, सन्ड्री डेटर्स में, नागपुर डेटर्स में, टैली डेटर्स, यहाँ पे विनीत रिफ्लेक्टिव्स। नाउ वी कैन सी द एंट्री अगेन। तो ऑप्शनल में जो एंट्री हम लोग डालते हैं उससे उस एंट्री का पूरा इफेक्ट नलिफाई हो जाता है, उसके दोनों इफेक्ट्स नहीं विजिबल रहेंगे और फिर भी वो एंट्री वहां पे रहेगी प्रेजेंट। तो हम लोग को अगर कोई एंट्री के बिना क्या हो रहा है ये चेक करना है तो हम लोग उसको ऑप्शन में डाल सकते हैं। अगर हमको वो एंट्री को वापस लेना है तो हम लोग कंट्रोल एल प्रेस करके वापस उस एंट्री को रेगुलर में डाल सकते हैं। So that is all about optional vouchers. अभी हम लोग एक और चीज देखेंगे, रेशियो एनालिसिस। अभी एज ऑडिटर्स ऑल ऑफ अस नो कि एनालिसिस कितना इम्पोर्टेंट होता है, और एनालिसिस में भी रेशियो एनालिसिस इज द मेजर पार्ट ऑफ एनालिसिस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम लोगों को समझ सकता है इससे सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, सीधा गेटवे ऑफ टैली आर प्रेस किया, रेशियोज आ गए सारे। हम लोगों को जो पहले मैन्युअली करने पड़ते होते थे पहले, तो ये तो अभी टैली एकदम क्लियरली हमारे सामने रख देता है। वी ऑल नो क्या है ये सारे रेशियोज, बट इसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं ऑडिट में वो मैं डिस्कस करना चाहूंगी। नाउ रेशियोज को हम सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं जब हम उनको कंपैरेटिव वे में देखेंगे। कंपैरिजन कैन बी विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और कंपैरिजन कैन बी विद प्रीवियस पीरियड्स ऑफ द सेम कंपनी। तो अभी यहाँ पे हम प्रीवियस पीरियड्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट थिंग विल डू इज आफ्टर कमिंग ऑन द स्क्रीन विल डू इज न्यू कॉलम ऐड करेंगे, अल्टर सी डालते यहाँ पे हम लोग टाइम पीरियड सिलेक्ट करेंगे। सो आई विल से अप्रैल 20 to March 21 and वापस अल्टर सी अप्रैल 19 to March 20। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, हाँ अल्टर सी अप्रैल 19 to March 20। सो अभी हम लोगों को ये रेशियोज कंपैरेटिव फॉर्म में मिल गए। मतलब 2020-21 में करंट रेशियो इतना हुआ करता था, 1920 में इतना था, 2021 में इतना था। हमारा एनालिसिस हम उस बेसिस पे कर सकते हैं, कंपैरिजंस हमारे सामने है एकदम। तो एंड सारे रेशियोज है यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, दैट इज ऑटो कॉलम। ठीक है, ऑल्ट एन प्रेस करना है, उसके बाद हमको यही डेटा मंथली, क्वार्टरली, वीकली, ईयरली जैसे आप चाहो आपको मिल सकता है। अभी हम लोग मंथली देखेंगे एंड अभी ये डेटा मंथली अवेलेबल है फ्रॉम अप्रैल 19 टू अभी हम लोगों का जो पीरियड है पूरा मार्च 21 तक। तो ये हो गया, हमको एकदम मंथली कंपैरेटिव एनालिसिस मिल गया। मतलब एकदम शॉर्ट टाइम में
कहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं सारे फाइनेंशियल फैक्टर्स, हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। एंड वन मोर थिंग अबाउट दिस इज, हम लोग इस व्यू को सेव कर सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि यस दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड, मुझे ऐसे ही फॉर्मेट में फाइंड आउट करना था कि मुझे मतलब क्या चाहिए, पूरा जो भी डेटा चाहिए था इसी फॉर्मेट में चाहिए, तो बार बार शायद मुझे ये लग सकता है, तो मैं मेरा ये व्यू सेव कर सकती हूँ। नाउ व्हाट आई विल डू इज प्रेस Ctrl+L, मैं सेव दिस व्यू। ठीक है, रेशियो एनालिसिस माय व्यू अभी मैंने पहले सेव करके रखे, तो मैं नंबर नेम चेंज कर रही हूँ 3। ओके ठीक है, अभी आई विल डू वन थिंग, अभी मुझे ना व्यू चेंज करना है। ठीक है, अभी मैं पीछे जाती हूँ, एक काम करती हूँ, रेशियो एनालिसिस। नाउ आई एम ऑन द फर्स्ट स्क्रीन अगेन ऑफ रेशियो एनालिसिस, और मैं अभी मेरा व्यू चेंज करना चाहती हूँ। आई विल प्रेस Ctrl+H। अभी यहाँ पे मुझे वो पूछ रहा है कौन से टाइप का व्यू चाहिए आपको, तो मेरे जो सेव्ड व्यूज है, मैंने अभी जो व्यू सेव किया था माय व्यू 3, मैं इसको एंटर करूंगी तो डायरेक्टली मुझे मैंने जो व्यू सेव करके रखा था वो मिल जाएगा। तो इट इज वेरी यूजफुल एंड इट इज अ वंडरफुल फीचर ऑफ टैली आई वुड से। मतलब ये सारे ही हम लोग बहुत कम यूज करते हैं और हम लोगों को ज्यादा पता भी नहीं होता है, बट टैली में ऐसे काफी सारे फीचर्स है। तो आई थिंक बस दैट्स इट। मैं अब ये हैंड ओवर करती हूँ पंकज सर को, आगे का आपको वो सिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच निवेदिता। थैंक यू सर। हाँ, जस्ट स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग। यस। So we were discussing about knowing, using and monetizing. Let us move ahead and start understanding something about Tally in detail. Advantage of accounting system. We are using accounting software, accounting system. The biggest advantage of accounting system is that it is very easy to create data. बहुत आसान होता है डेटा क्रिएट करना। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि डिसएडवांटेज क्या है, इट इज एक्सट्रीमली इजी टू लूज द डेटा। आपका डेटा जितनी आसानी से क्रिएट हो सकता है उससे 10 गुना आसानी से आपका डेटा पूरा खत्म हो सकता है, डिलीट हो सकता है, नुकसान हो सकता है। एक सवाल है, मुझे ऐसा लगता है इस सवाल का मैं जवाब दे दूं इमीडिएटली। मनीष मेहरचंदानी, इनका कहना है हाउ कैन वी यूज सेड मेनू इफ डेटा हैज बीन स्प्लिटेड इन वेरियस फाइनेंशियल ईयर। You mean to say that you have splitted the tally company and your tally company does not have data for more than 1 years in same company. अगर ऐसा है तो आप मल्टीपल कंपनीज एक साथ ओपन कर सकते हैं और मल्टीपल कंपनी का भी व्यू आप यहाँ पे ले सकते हैं। मतलब आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर दो अलग अलग, तीन अलग अलग कंपनी का डेटा इसी फॉर्मेट में मिलेगा आपको, लेकिन वहां पे सेव व्यू वाला फीचर काम नहीं करेगा, लेकिन आप डेटा जरूर देख सकते हैं। So disadvantage of accounting systems, it is extremely easy to lose the data. तो सबसे पहला जो काम हमें करना है, जब भी हम ऑडिट की बात करते हैं तो ऑडिट में हमारा बहुत सारा काम होता है। मतलब पिछले 6 महीने में जो काम नहीं हुआ वो हो सकता है 6 दिन में हो जाए। आप बहुत सारी एंट्रीज नहीं कर ले, बहुत सारा चेकिंग कर ले, बहुत करेक्शन कर ले, और उसके बाद अगर कहीं आपके डेटा में गड़बड़ हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा झटका आपको लग सकता है। सो फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इज दैट इलेक्ट्रॉनिक डेटा में डेटा हमारा जब भी स्टोर होता है तो डेटा स्टोर होता है इन 2 फॉर्मेट्स, वन इज कॉल्ड एज मास्टर डेटा एंड अदर इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन डेटा। तो मास्टर डेटा और ट्रांजैक्शन डेटा, ये 2 फॉर्मेट में डेटा हमारा स्टोर होता है। और ये फोटो देख के आपको क्या लग रहा है? व्हाट डू यू फील आफ्टर सीइंग दिस फोटोग्राफ? ये फोटोग्राफ जो है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही है। तो बेचारे का डेटा जो है वो कुछ गड़बड़ हो गया पूरा ऑडिट करने के बाद में, और अभी फिर से कैसे काम करना है ये उसके समझ में नहीं आ रहा है। तो आपकी ये स्थिति ना हो इसलिए आपके पास टैली का ऑटो बैकअप सिस्टम होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट देयर इज नो ऑटो बैकअप सिस्टम इन टैली, तो ये आपको कहीं ना कहीं से एक्सटर्नली लेना पड़ेगा। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ चेयरमैन साकेत बगड़िया सर,
मैं आपको आज एक ऑटो बैकअप का सिस्टम देने वाला हूँ. यूजुअली वी सेल इट टू पीपल at rupees 5,400, but those who are attending this webinar, this particular auto backup module is offered to you free of cost, no charges at all. तो ये ऑटो बैकअप का सिस्टम मैं आपको मेरी तरफ से आज फ्री देने वाला हूँ. जिनको भी ऑटो बैकअप का सिस्टम चाहिए, एक बार मुझे सिर्फ आप ईमेल कर दे और मैं मेरा ईमेल यहाँ पे लिख देता हूँ. आपको हमारे ऑफिस से फोन आएगा और उसके बाद हम आपको, हमारे ऑफिस के लोग इंस्टॉल उसको करके दे देंगे. चलिए मैं आपको यहाँ पे मेरा ईमेल टाइप करके दे रहा हूँ. So I have typed my email pankaj@indradhanu.info. Just send one email to this particular address. आपका नाम और मोबाइल नंबर इतना भी लिख दिया आपने तो चलेगा, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. नाम और मोबाइल नंबर लिख दीजिए आप और ये ऑटो बैकअप सिस्टम हम आपको लगा देंगे विदाउट एनी चार्जेस. सो वी वर टॉकिंग अबाउट, ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैकअप, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा. डेटा इज एज गुड एज गोल्ड फॉर अस. ऑडिट पीरियड में हमने जितना भी काम किया वो अगर चला गया और हमारे पास बैकअप नहीं है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. तो आपका बैकअप लोकल पे रहेगा. दूसरी चीज, आपने सिक्योरिटी कंट्रोल लगाना चाहिए. आज का हमारा टॉपिक सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैं आपको ये प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे बता रहा हूँ. यू मस्ट हैव सिक्योरिटी कंट्रोल इन योर Tally software. Why? Because who has recorded a particular entry, when a particular entry was recorded, we must be able to find it out. अगर हमें ये पता चलेगा तो बहुत सारी चीजें आसान हो सकती है, गलतियां पकड़ना बहुत आपके लिए आसान हो सकता है. So you must have auto backup system as well as security and access control. So you can prevent deletion, alteration and backdated access using security control. You can prevent master data creation as well as alteration. तो ये CA का डेटा है. CA आफ्टर लूजिंग क्लाइंट डेटा इन द लास्ट वीक ऑफ सितंबर. अभी तो खैर दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर के लास्ट वीक में अगर आपका डेटा चला जाए तो ये इस तरह से हालत हो सकती है और मैं नहीं चाहता हूं आपकी हालत ऐसी हो. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट टूल्स एंड टैली. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट टूल्स जो है, इसका डिस्कशन हम आज करेंगे. आज और कल 2 दिन में हम ये डिस्कशन करने वाले हैं. तो आपको मैं एक एक चीज यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या क्या ऑडिट टूल्स है. कुछ चीजें, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ फीचर्स ऐसे हैं टैली के जिसका डायरेक्टली ऑडिट से कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको एज एन ऑडिट टूल यूज कर सकते हैं. यू कैन डेफिनेटली यूज इट एज एन ऑडिट टूल इवन इफ इट इज नॉट कनेक्टेड विथ ऑडिट फीचर डायरेक्टली. सो व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स फीचर? ये स्टैटिस्टिक्स फीचर क्या है? एक मिनट, मैं मेरा फुल स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ ताकि काम करना मेरे लिए भी आसान हो. चलो, तो नाउ आई विल बी टॉगलिंग बिटवीन पावर पॉइंट स्क्रीन एंड टैली स्क्रीन. तो टैली और पावर पॉइंट, इसके बीच में हम टॉगल करते रहेंगे. स्टैटिस्टिक्स, ये रिपोर्ट आपने बहुत बार देखा होगा. तो स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट देखने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स. डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के बाद में हम जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और उसके बाद में हम जाएंगे स्टैटिस्टिक्स. सो DSS इज द शॉर्टकट की फॉर स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट. दिस इज द स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट वेयर यू विल बी एबल टू नो. जब आप ऑडिट स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले ये स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट आप देख लीजिए और वहां पे आपको अंदाजा आ जाएगा कि ये कंपनी के डेटा में है क्या, यहाँ पे कौन से फीचर यूज किए गए हैं, इसमें क्या लेवल है. तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे जीरो वाले वाउचर्स है. जीरो जैसे अटेंडेंस में जीरो है, उसके बाद कमीशन बिलिंग में जीरो है. तो ये जीरो में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है. आई एम प्रेसिंग F12. आफ्टर प्रेसिंग F12 आई कैन जस्ट शो वाउचर टाइप हैविंग एंट्रीज ओनली. यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, इसको कर रहा हूँ यस. तो ये जीरो वाले हटा देगा. जहां पे जीरो था वो जीरो हटा दिया इसने, और जीरो हटाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने वाउचर टाइप में ट्रांजैक्शंस है वही वाउचर टाइप यहाँ पे दिख रहा है. नाउ इट इज इजी फॉर यू टू एनालाइज द डेटा बिफोर यू स्टार्ट योर ऑडिट. बिफोर यू स्टार्ट योर ऑडिट इट इज नेसेसरी and useful to analyze the data first. I call this particular thing as marking 4 corners. We have to mark the 4 corners. मतलब हमको डेटा जो मिलने वाला है वो उसके आउटर लिमिट को हम पहले जान लेंगे, समझ लेंगे. तो यहाँ पे कितने वाउचर्स है आप देख सकते हैं. इन ऑल देयर आर 1821 वाउचर्स एंड आउट ऑफ दिस 1821 वाउचर्स अब सेल्स कितना, परचेस कितना, रिसीट कितना, पेमेंट कितना, ये सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है. कोई स्पेशल टाइप का वाउचर है क्या? जैसे एज फार एज आवर ऑडिट इज कंसर्न, जर्नल वाउचर्स आर द मोस्ट सेंसिटिव वाउचर फॉर अस. सो हाउ मेनी जर्नल वाउचर्स आर देयर? वी विल गो टू दिस जर्नल
जर्नल एंड चेक। यहाँ पे देखिए 251 जर्नल वाउचर दिख रहे हैं और 2 कैंसल्ड है यहाँ पे। ये 251 में क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब ऑडिट आपको स्टार्ट करना ही है, तो सबसे पहले हम जर्नल वाउचर से ही स्टार्ट करेंगे। जितने भी जर्नल वाउचर है यहाँ पे बहुत सारा घोटाला हो सकता है, बहुत सारा आपका ऑडिट मटेरियल यहाँ पे हो सकता है, तो हम सबसे पहले जर्नल वाउचर को चेक करेंगे। जर्नल वाउचर में क्या क्या है हम देख लेंगे। नाउ सेकंड एस्पेक्ट मे बी चेकिंग ऑफ परचेस इनवॉइसेस वेयर जीएसटी इज इन्वॉल्व। अब ये डिसीजन आपका है कि आपको पहले क्या चेक करना है, बाद में क्या चेक करना है, इंपॉर्टेंस किसे देना है। मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूं कि आप कहां से क्या कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट विथ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि कितने वाउचर्स कहां पे है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डेटा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऑन लेफ्ट हैंड साइड यू आर एबल टू व्यू ट्रांजैक्शन डेटा। ऑन लेफ्ट हैंड साइड यू आर व्यूइंग ट्रांजैक्शन डेटा एंड ऑन राइट हैंड साइड यू आर व्यूइंग मास्टर डेटा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसके पहले की स्लाइड में कहा था कि आप अकाउंटिंग डेटा जब भी क्रिएट करते हैं, whenever we create accounting data, it is created in 2 parts. Part number 1 is master data and part number 2 is transaction data. So on right hand side you are viewing master data and on left hand side you are viewing transaction data. How many ledgers are there in this particular company? 1698 ये इतने ledgers है। ग्रुप्स कितने हैं, कॉस्ट सेंटर्स कितने हैं, स्टॉक आइटम कितने हैं, स्टॉक आइटम स्टॉक ग्रुप कितने हैं, गोडाउन कितने हैं, वाउचर टाइप्स कितने, यूनिट्स ऑफ मेजर कितने, करेंसीज कितनी। तो ये सारी जानकारी आपको पहले ही नजर में मिल जाएगी और यहाँ से आप डिसीजन ले सकते हैं कि अब मुझे फोकस कहाँ पे करना है, मुझे फोकस कहाँ पे करना है, क्या देखना है, किसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना है, किसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। बिकॉज time is always a limiting factor for us and whatever may be the size of data, we have to audit the data completely. चाहे कितना भी बड़ा डेटा हो, हमें कंप्लीट उसका ऑडिट करना जरूरी है। सैम्पलिंग वगैरह हम नहीं कर सकते, तो कंप्लीट डेटा ऑडिट आप टैली के माध्यम से, टैली के सहारे बहुत आसानी से कर सकते हैं बाय पुटिंग प्रॉपर वेटेज फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। सो दिस इज अबाउट स्टैटिस्टिक्स। अब जैसे निवेदिता ने थोड़ी देर पहले कहा था कि स्टैटिस्टिक्स में भी आप यहाँ पे ईयरली स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू चेक द ईयरली स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ पे मैं न्यू कॉलम में जाता हूँ और न्यू कॉलम में जाने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ A20 M21। तो यहाँ पे 2 साल का स्टैटिस्टिक्स मुझे दिख रहा है। अब किसी ने थोड़ी देर पहले पूछा था कि हमारा कंपनी डेटा स्प्लिट हो गया तो क्या करना, तो आप 2 अलग अलग कंपनी ओपन करके भी इस तरह से रिपोर्ट देख सकते हैं। सो यू कैन हैव अ कंपैरेटिव रिपोर्ट। अब इसके अलावा ये स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट में हमें देखना है, मैं ऑटो कॉलम में जाता हूँ और यहाँ पे मुझे देखना है कि मंथली क्या पोजीशन है। तो ये मंथली अगर मैं देखूंगा तो मंथली स्टैटिस्टिक्स मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, मंथली स्टैटिस्टिक्स। फिर यहाँ से मैं F12 कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग F12 हियर। हाँ, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ यस। जीरो वाले मैंने वाउचर हटा दिए, तो जीरो हटाने के बाद में जो डेटा बचेगा वो मेरा वो एक्चुअल डेटा है कि जहाँ पे मेरा वाउचर एंट्री हो चुकी है। So this is how statistics report can be used for understanding the data mix of any type of tally company. चलिए, let us go to next feature, day book. ये डे बुक रिपोर्ट आपने कई बार देखा होगा, जो टैली यूजर्स है उन्होंने डे बुक रिपोर्ट कई बार देखा होगा, लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था कि knowing a feature and using a feature is something different. You might be knowing the feature, but you might not be knowing how to use it, or you might not be using that particular feature in a particular fashion, in a particular way for getting work done. मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको ऑडिट, तो आपको और मुझे भी 100% ऑडिट हमारे लिए जरूरी है। वी कैनॉट रिलाई ऑन सैम्पलिंग। ये सैम्पलिंग के भरोसे हम नहीं रह सकते। सैम्पलिंग का जमाना गया। क्यों गया? जब मैनुअल सिस्टम था तब हम सैम्पलिंग पे काम चलाते थे। आज की तारीख में डिजिटल सिस्टम में कोई सैम्पलिंग की जरूरत ही नहीं है। अब आपको 100% ऑडिट करने के लिए एक और तरीका मैं यहाँ पे बताता हूँ। डे बुक रिपोर्ट, ये टैली ERP 9 में ये डिस्प्ले के अंदर था। अब प्राइम में इन्होंने क्या किया है, इसको दोनों जगह दे दिया। ये डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स और डे बुक, ये यहाँ पे डे बुक दिया है और यहाँ पे भी दे दिया इन्होंने ट्रांजैक्शंस में। सो टैली हैज गिवन दिस डे बुक मेनू एट 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट पे इन्होंने रिपोर्ट दिया है। तो ये डे बुक यहाँ से मैं ओपन करता हूँ। अब डे बुक ओपन करने के बाद में डे बुक में क्या होता, क्या व्हाट इज दिस डे बुक रिपोर्ट? सम ऑफ यू माइट बी नोइंग व्हाट इज दिस डे बुक रिपोर्ट and some of you might not be knowing this day book report.
चलिए आपको मैं बताता हूँ व्हाट इज दिस डे बुक रिपोर्ट. Day book is a report where you will be getting all the vouchers that are recorded in Tally. I am repeating. Day book is a report where you will be getting all the vouchers that are recorded in Tally. May it be accounting voucher, may it be inventory voucher, may it be a purchase order, may it be a sales order, which does not affect your trial balance. तो जो ट्रायल बैलेंस पे असर करता है वो, और जो ट्रायल बैलेंस पे असर नहीं करता है, ऐसे सारे वाउचर्स, ऑप्शनल वाउचर्स भी, सारे के सारे वाउचर्स आपको डे बुक रिपोर्ट में मिलने वाले हैं. तो टैली में डे बुक छोड़ के ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है जहां पे सारे के सारे वाउचर्स आपको मिल जाएंगे. एंड दिस डे बुक रिपोर्ट एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, I have seen many softwares, many accounting softwares, but I have not seen this type of report in any other software, either daybook or statistics report. So what to do with this daybook report? As I told you right just now, daybook is a report where you will be getting complete list of exhaustive list of all the vouchers. तो यहाँ पे ये daybook कौन सी तारीख का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, this is for 31st March. I am pressing F2 for date, and I am pressing space bar for removing the date. As soon as I press enter here, Tally will show me all the vouchers. जितने भी vouchers है वो सारे के सारे vouchers यहाँ पे मुझे दिख जाएंगे. Now it will take some time depending on the size of data. अगर आपके डेटा में, जैसे अभी देखा मैंने 1800 ट्रांजैक्शंस थे यहाँ पे, तो उसने कुछ 10, 12, 15 सेकंड लिए डे बुक रिपोर्ट ओपन करने के लिए. मैंने कुछ कंपनीज ऐसी भी देखी है जहाँ पे डे बुक रिपोर्ट ओपन करने के लिए 30 मिनट 35 मिनट का समय लगता है. It takes 35 minutes to open the day book report. और अकाउंटेंट्स को ये स्पेसिफिकली कहा जाता है कि डे बुक रिपोर्ट ओपन करना नहीं, क्योंकि तुम डे बुक रिपोर्ट ओपन करोगे तो बाकी सबका काम रुक जाएगा, हैंग हो जाएगा. So this is a day book report. Here you will be getting all the vouchers. अब इसका करना क्या, इसका करना क्या मैं आपको बताता हूँ. बहुत छोटा सा फीचर है टैली में, लेकिन बहुत काम का फीचर है. और इस फीचर के सहारे मैंने काम करते करते कई सारी गलतियों को बहुत आसानी से बहुत कम समय में पकड़ा है, जो कि काम आप भी कर सकते हैं. What to do with this day book? I am just clicking on this F12 configure. ये F12 configure में जाता हूं मैं यहाँ पे. उसके बाद में यहाँ पे सबसे नीचे एक ऑप्शन है सॉर्टिंग मेथड. व्हाट इज दिस सॉर्टिंग मेथड? यू कैन सॉर्ट द डेटा. अब सॉर्टिंग मेथड में आप जाके यहाँ पे अमाउंट डिक्रीजिंग कर सकते हैं. यू कैन सिलेक्ट दिस ऑप्शन अमाउंट डिक्रीजिंग. ये मैंने सिलेक्ट कर लिया. अगेन ये थोड़ा सा समय लेगा डेटा ज्यादा होने के कारण. हाँ, डेटा अगर बहुत ही कम है तो फट से खुल जाएगा, और डेटा ज्यादा है तो समय ज्यादा ले सकता है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ऊपर अगर मैं जा रहा हूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये पर्टिकुलर कंपनी में, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था मार्किंग द 4 कॉर्नर्स. जब हम स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि व्हाट इज द आउटर लिमिट ऑफ दिस डेटा. ये कंपनी में कितने ट्रांजैक्शन है, कितने लेजर्स क्रिएटेड है, कितने ग्रुप्स क्रिएटेड है, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें कितना काम करना है, ये आपको स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट से समझ में आ जाएगा. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कंपनी में सबसे बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन कौन सा है. बिकॉज एज एन ऑडिटर वी आर मोर इंटरेस्टेड इन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस. 2 रुपए का राइट ऑफ किया, 5 रुपए का राइट ऑफ किया, 3 रुपए का डिस्काउंट दिया, ये ट्रांजैक्शन आपने चेक नहीं किए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है. So why to waste time on such type of transactions? So now you are able to understand what is the upper limit of any transaction in terms of amount, as far as amount is concerned. तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक ट्रांजैक्शन दिख रहा है यहाँ पे 21,71,728. Now this is something of your interest as an auditor. तो ये सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन है. यहाँ उसके बाद 3 लाख, 2 लाख, 2,74,241, 2 lakhs, 160, 130, 130. So transactions are decreasing, मतलब amount of transaction is decreasing. So all the transactions are arranged in amount wise decreasing order. सबसे छोटा ट्रांजैक्शन कौन सा है वो भी हम देख लेते हैं. चलिए सबसे नीचे जाके देखेंगे. तो सबसे नीचे जाके हम देख सकते हैं सबसे छोटा ट्रांजैक्शन है 0.03, मतलब 3 पैसे का ट्रांजैक्शन है. तो 3 पैसे का ये क्या ट्रांजैक्शन है ये भी देख लेते हैं. राइट ऑफ किया है 3 पैसा, कोई इंटरेस्ट नहीं हमें, छोड़ दो इसको. तो सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन जो था वो था 21 लाख का, 21 lakhs. तो ये 21 lakhs का ट्रांजैक्शन जो है ये हमारे लिए काम की चीज है.
अब यहाँ पे एक राइट साइड में ऑप्शन दिया है F4 वाउचर टाइप, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ F4 वाउचर टाइप, यू कैन सिलेक्ट द वाउचर टाइप, लेट अस से पेमेंट, ये पेमेंट कैश, ये ले लिया मैंने पेमेंट कैश, यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। एक काम करते हैं सेल्स का लेते हैं, सेल्स जीएसटी, तो सेल्स जीएसटी में सबसे बड़ा सेल्स का ट्रांजैक्शन कौन सा है, सबसे छोटा सेल्स का ट्रांजैक्शन कौन सा है, कितने 1 लाख रुपए के ऊपर है, कितने 1 लाख रुपए के नीचे है, यू कैन आइडेंटिफाई दिस वेरी इजीली एंड यू कैन डिसाइड योर एरिया ऑफ ऑपरेशन, योर फोकस, योर वेटेज फॉर पर्टिकुलर मैटर। तो कौन से मैटर को कितना समय देना है ये आप यहां से तय कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, हाँ, सो दिस इज अबाउट डे बुक। नाउ वंस अगेन आई एम प्रेसिंग F12। यहाँ पे ऑप्शंस कौन कौन से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अल्फाबेटिकल A to Z, अल्फाबेटिकल Z to A, अमाउंट डिक्रीजिंग, अमाउंट इंक्रीजिंग, करेंसी डिक्रीजिंग, करेंसी इंक्रीजिंग, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब जो डेट वाइज ऑर्डर में आएगा वही रहेगा ये, इन सीक्वेंस ऑफ एंट्री, इन सीक्वेंस ऑफ एंट्री मतलब क्या, जो एंट्री पहले हो गई वो पहले आने वाली है, ये भी एक बहुत काम की चीज है आपके लिए, मैं बता दूं काम की चीज, इन सीक्वेंस ऑफ एंट्री मतलब आप मान के चलिए कि 31 मार्च को हमारी एंट्रीज होती है, 31 मार्च को, तो बहुत सारी एंट्रीज हम 31 मार्च को एंट्री करते हैं। कीर्ति सर, करेंसी डिक्रीजिंग मतलब अगर आपके पास मल्टी करेंसी अकाउंटिंग कर रहे हैं आप रुपीज में अकाउंटिंग कर रहे हैं, आप डॉलर में, येन में है, दिनार में है, दिरहम में है, अलग अलग करेंसी का अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो आप करेंसी वाइज ट्रांजैक्शन को अरेंज कर सकते हैं कि ये डॉलर का सेल्स है, ये रुपीज का सेल है, ये जापानीज येन का सेल है, ये डॉइच मार्क का सेल है, तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंसी को अरेंज करेगा। वी वर टॉकिंग अबाउट, हाँ यस, हाँ, लेकिन नॉर्मली क्या है कि जहां पे मल्टी करेंसी अकाउंटिंग होता है, मैंने ये देखा है कि नॉर्मली मल्टी करेंसी में 2 ही करेंसी होती है, एक रुपीज और एक डॉलर, तो नॉर्मली हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डॉलर में ही करते हैं। ऐसा बहुत कम हो सकता है कि आपके पास 10-12 करेंसीज में आप काम कर रहे हैं, हो भी सकता है लेकिन नॉर्मली नहीं होता है वैसा। तो हम बात कर रहे थे व्हाट वी वर टॉकिंग, F12 में मैं बात कर रहा था आपके साथ में इन सीक्वेंस ऑफ एंट्री, इन सीक्वेंस ऑफ एंट्री यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, तो हमारी 31 मार्च को 31 मार्च को हम बहुत सारी एंट्रीज करते हैं, और एंट्री करते करते कभी कभी ऐसा होता है कि कौन सी एंट्री आखिरी में हमने किया था, नई एंट्री कौन सी है, डेट तो सभी की 31 मार्च है, या हो सकता है 1 अप्रैल को आपने एंट्री किया, आपका आज की तारीख, हमारी आज की तारीख है 16th of December एंड वी हैव रिकॉर्डेड अ ट्रांजैक्शन ऑन 1 अप्रैल 20, तो ये 1 अप्रैल 20 को हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है, लेकिन इन सीक्वेंस ऑफ एंट्री मतलब जो एंट्री पहले हो रही है वो पहले आएगी, जो बाद में हो रही है वो बाद में आएगी, तो ऑटोमेटिकली आपको ये पता चल जाएगा कि फ्रेश एंट्रीज कौन सी है, जो आखिरी में एंट्री किया है वो कौन सी है, ये भी आपको पता चलेगा। वाउचर नंबर असेंडिंग, उसके बाद वाउचर नंबर डिसेंडिंग, उसके बाद वाउचर नंबर, उसके बाद सीक्वेंस ऑफ A to Z और सीक्वेंस ऑफ Z to A, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। ये मैंने आपको एक डे बुक का छोटा सा फीचर बता दिया, डे बुक रिपोर्ट आपने इसके पहले कई बार देखा होगा, लेकिन डे बुक में आप इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं डेटा को, ये शायद आपके लिए नया पॉइंट है, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ। तो जितने लोगों को लगता है कि ये नया पॉइंट है, जरा एक बार चैट बॉक्स में न्यू लिख देना, दिस वाज समथिंग न्यू। अगर मुझे इमीडिएट फीडबैक मिलते रहे तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा। यस, कीर्ति सर सेज न्यू, यस, नेहा जाजू न्यू, यस, आशीष नेहरा न्यू, नीलेश तिवारी न्यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक। यस, निकुंज मोदी न्यू, विदित अग्रवाल न्यू, रोशनी चौरसिया न्यू, सीए प्रतीक सरडा न्यू, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये इस तरह के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसकी वजह से आपको कोई बहुत चीज मतलब टैली में सीखने के लिए समय देने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट spend huge amount of time in learning Tally. Just by using this type of small tips and tricks, you can get your work done
very easily and very comfortably. चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं हम. डे बुक हो गया हमारा. एक है डिटेल ट्रायल बैलेंस. डिटेल ट्रायल बैलेंस ये फीचर भी टैली में बहुत सालों से है, मतलब टैली 9 में भी था, टैली ERP 9 में भी था और टैली प्राइम में भी है. तो ये टैली में डिटेल ट्रायल बैलेंस क्या है ये भी हम अभी डिस्कस करते हैं, मैं आपको बताता हूं. लेट अस गो टू डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स. लेट अस गो टू ट्रायल बैलेंस. अब ट्रायल बैलेंस में आने के बाद नॉर्मली ये इस तरह का ट्रायल बैलेंस आपको मिलने वाला है. यू विल बी एबल टू व्यू दिस टाइप ऑफ ट्रायल बैलेंस normally in tally. This is called as grouped trial balance. This is called as group trial balance, and you can make it a detailed trial balance also, or you can make it alphabetical trial balance also. यहाँ पे अगर मुझे डिटेल चाहिए तो मैं यहाँ पे अल्टर F1 करूंगा. पहले टैली ERP 9 में यहाँ पे एक डिटेल्ड का बटन हुआ करता था, तो ये डिटेल्ड का बटन टैली वालों ने हटा दिया, लेकिन वो शॉर्टकट की जो है वो शॉर्टकट की अभी भी जिंदा है, वैलिड है, चलती है शॉर्टकट की. So I can get a detailed trial balance here. If I press Alt F1 again, the trial balance will be grouped. Now, if I want alphabetical trial balance, I am clicking here. I am making it ledger wise. तो यहाँ पे लेजर वाइज मैं कर रहा हूँ. तो लेजर वाइज करने के बाद यहाँ पे ट्रायल बैलेंस जो है वो मेरा वो पूरा का पूरा मेरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएगा, और अल्फाबेटिकल में ABCD वाइज आएगा. यहाँ पे ग्रुप कोई नहीं दिखेगा, ग्रुप सारे हट गए. Now I was discussing with you about detailed trial balance. ये अभी मैं फिर से ग्रुप वाइज लेता हूँ और यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ F12. I am clicking F12 here. Show opening balances yes. Show transactions yes. Net transactions को no ही रखना है. Show closing balance yes. Now I am pressing enter, enter, enter and accept. This is called as detailed trial balance as well as group trial balance. Now I am pressing Alt F1. I am pressing Alt F1 to get a detailed trial balance, and that too with 4 columns: opening balance, debit transaction totals, credit transaction totals and closing balance. तो यहाँ पे मुझे 4 चीजें, 4 columns यहाँ पे दिख रहे हैं जहाँ पे amount लिखा है. There are 4 columns where amount is typed here. Now अब इसका करना क्या? इसका करना क्या? हाँ, इसमें अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है करने के लिए. हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. What we can do, we can analyze and understand so many things out of this detailed trial balance. First of all, जैसे एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में हमें देखना होता है कि इज देयर एनी वायलेशन ऑफ सेक्शन 269 SS और सेक्शन 269 T. लोन कैश में दिए है क्या? तो कहीं ऐसे ट्रांजैक्शन है क्या कि लोन ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था, ड्यूरिंग द ईयर लोन लिया और ड्यूरिंग द ईयर लोन वापस कर दिया, ना ओपनिंग बैलेंस है ना क्लोजिंग बैलेंस है. तो वो चीज, वो उस टाइप के ट्रांजैक्शन यहाँ पे आपको दिखने वाले हैं. नाउ लेट अस गो टू अनसिक्योर्ड लोन. तो यहाँ पे देखिए अनसिक्योर्ड लोन में मैं एंटर करता हूँ. अनसिक्योर्ड लोन में जितने भी ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है. तो अनसिक्योर्ड लोन के ट्रांजैक्शन अगर कैश में है तो आप अंदर जाके देख सकते हैं. तो ओपनिंग भी 0 है, क्लोजिंग भी 0 है. तो नॉर्मली ये इस टाइप का लेजर आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, ना बैलेंस शीट में आएगा. तो हो सकता है ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आपकी नजर से छूट जाए. तो यहाँ पे आपको एक नजर में पता चलेगा कि यहाँ पे डेबिट ट्रांजैक्शन टोटल कितनी है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन टोटल कितनी है. सो दिस इज वन एस्पेक्ट. यू कैन चेक डेटर्स और क्रेडिटर्स where there were no opening balances, no closing balances, and there are certain transactions. You can check there are certain balances in debtors which are pending since opening. Opening से pending है ऐसे कितने डेटर के balances है, क्योंकि डेटर रिकवरेबल है कि नहीं है ये भी हमें बैलेंस शीट में, ऑडिट में ये हमारे लिए जरूरी होता है. तो डेटर रिकवरेबल है कि नहीं, तो उसका सिर्फ ओपनिंग है और बीच में कोई ट्रांजैक्शन उसके साथ नहीं हो रहा है. तो ओपनिंग ही है और पिछले 3 साल से ओपनिंग आ रहा है. तो ये यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगी कि ओपनिंग है तो फिर कब से ओपनिंग है, तो फिर पुरानी कंपनी देखो या फिर इसी कंपनी में उसका डेटा है तो आप इसी कंपनी को पीछे जाके और देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये 19 से लेके 21 तक है. अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि डेटर ऐसा कोई है क्या कि 2 साल से ओपनिंग है और कोई ट्रांजैक्शन बीच में हुआ ही नहीं, 2 साल में कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है. इफ इट इज द केस, देन
it is something to be questioned why this particular debtor balance is pending since last 2 years. Why it is pending? Is it really recoverable? If it is recoverable, then recover it. If it is not, then write it off. तो ये इस तरह के हम डिसीजन ले सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो आप देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन शॉर्ट, ये जो ट्रायल बैलेंस है, डिटेल ट्रायल बैलेंस, इसका मैं फायदा आपको बताता हूँ. इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इट गिव्स यू बर्ड्स आई व्यू. इट गिव्स यू बर्ड्स आई व्यू ओवर योर अकाउंटिंग. तो अकाउंटिंग के ऊपर आप जैसा पंछी आसमान से देखता है, उसे हम कहते हैं बर्ड्स आई व्यू. तो बर्ड्स आई व्यू आपको मिल जाएगा कि ये पूरे अकाउंटिंग में क्या क्या हुआ है, क्या क्या हो चुका है, वो आपको एक नजर में फट से ध्यान में आ जाएगा. यहाँ पे देखिए, जैसे फिक्स्ड एसेट की हम बात करेंगे, तो फिक्स्ड एसेट में अगर परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट है तो यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा. अगर डेप्रिसिएशन है तो क्रेडिट में आएगा. अगर डिस्कार्ड किया है हमने, राइट ऑफ किया है, सेल किया है, तो भी क्रेडिट में आएगा. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी में सिर्फ ओपनिंग है, कोई डेबिट नहीं, कोई क्रेडिट नहीं. इट मींस दैट नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज. ये लैपटॉप दिख रहा है यहाँ पे, ये अटेंडेंस मशीन है, ये सॉफ्टवेयर है कोई, यहाँ पे कोई डेबिट नहीं, कोई क्रेडिट नहीं. मतलब ये आपके 1 मिनट में नजर में आ गया कि डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया ही नहीं है, या फिर इसमें कोई परचेस नहीं हुआ है. तो इस तरह का आपका एनालिसिस आप बहुत स्पीड से कर सकते हैं, एकदम फास्ट कर सकते हैं. जैसे हम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट्स में कुछ है कि इन्वेस्टमेंट खरीदा है, बेचा है, तो डेबिट क्रेडिट में दोनों दिख रहे हैं. सन्ड्री क्रेडिटर्स में दिख रहा है, डेटर्स में दिख रहा है, कैश इन हैंड में दिख रहा है, टीडीएस में दिख रहा है. You can have a complete bird's eye view over your accounting, and that too within few minutes only. You will be able to understand where to focus, where to concentrate. So this is detailed trial balance. Let us go to the next point. Mark changes. This has been discussed by Nivedita. How you can use this feature to mark either newly created vouchers or existing vouchers which have been altered. तो अल्टरेशन या फिर न्यू क्रिएशन के लिए ये मार्क चेंजेस का सिस्टम आप यूज कर सकते हैं. ये मैं फिर से डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये निवेदिता ने डिस्कस किया था. कॉलमनर रिपोर्ट, this has been discussed by Nivedita to some extent, but again I am discussing this particular feature because there are many dimensions to this columnar report. तो ये columnar report में बहुत सारी चीजें हैं. ये अब मैं आपको बताता हूँ columnar report में क्या क्या हो सकता है. Now let us go to any particular ledger, display account books ledger. Now just a minute, let us go to sales register. Let us go to sales register. This is a sales register. Many a times we need to have a columnar report for sales. तो ये sales के लिए एक columnar report मैं यहाँ पे ले रहा हूँ. यहाँ पे right side में आप देखिए, यहाँ पे columnar करके बटन है, F8 columnar. I am clicking this button. You can design a report according to your own way in this particular columnar report feature. आप अपने लिए जैसा आपको चाहिए वैसे आप एक रिपोर्ट बना सकते हैं, और रिपोर्ट में आपको कौन से कॉलम चाहिए, कौन से नहीं चाहिए, वो आप डिसाइड कर सकते हैं. फिलहाल हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे. जैसा डिफॉल्ट में है वैसे ही रखते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, ऑल आइटम्स ऑटोमेटिक कॉलम्स. सो आई एम सेटिंग इट टू यस एंड आई एम एक्सेप्टिंग. तो हमारे सेल रजिस्टर में जितने भी कॉलम्स है, जितने भी लेजर्स है, उन सारे लेजर्स के लिए एक एक कॉलम आ जाएगा. तो सीजीएसटी, एसजीएसटी यहाँ पे दिख रहा है. अब सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी 2.5%. अगर कहीं आपने यूज किया है तो वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे. यहाँ पे देखिए 3 दिख रहा, 3, तो 3 यहाँ पे और है. यहाँ पे मैं राइट साइड में जाके और देख सकता हूँ. आपके सेल्स बिल में कौन कौन से इनकम लेजर आ चुके हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा. तो यहाँ पे देखिए इवेंट फी, टास्क मैनेजर सब्सक्रिप्शन फीस, ऑडियो वीडियो सेल्स, इंस्टॉलेशन चार्जेस, कंसल्टेंसी एंड सुपरविजन चार्जेस, फीस, बिजनेस अकाउंटिंग, ऑडिट फीस, ये अलग अलग यहाँ पे आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहा है. तो ये आपके सेल रजिस्टर में, सेल्स बिल में जितने भी लेजर्स यूज किए हैं वो लेजर्स को ये रिपोर्ट कॉलम में डालेगा, और कॉलम वाइज आपको इंफॉर्मेशन देने वाला है. नाउ आई हैव सिलेक्टेड दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट फॉर वन पर्टिकुलर मंथ. इफ आई वांट टू सिलेक्ट इट फॉर द होल ईयर, I can select it for the whole year very easily, and you will be getting the complete information for all the ledgers that
have been used in sales transaction. तो ये जैसे सेल्स के लिए है वैसे ही परचेस के लिए हो सकता है, वैसे ही बैंक लेजर के लिए हो सकता है, वैसे ही कैश लेजर के लिए हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजों में आप ये कॉलमनर रिपोर्ट यूज कर सकते हैं. सो यू कैन यूज दिस कॉलमनर रिपोर्ट वेरी इजीली. तो अच्छा, इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट करते समय यहाँ पे भी कुछ खास बातें मैं आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पे टैली ने एक्सपोर्ट का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया. यहाँ पे अब आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाके बहुत सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं. ये शो मोर का बटन है, ये शो मोर को ऊपर मैं क्लिक करता हूँ. अब यहाँ पे देखिए, जब आप इसे एक्सपोर्ट टू एक्सेल करेंगे तो एक्सपोर्ट टू एक्सेल करते समय आपके पास क्या क्या ऑप्शन है. रिपोर्ट टाइप कॉलमनर, फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट कंडेंस. क्योंकि क्या होता है कि जब आपका सेल रजिस्टर बहुत बड़ा है और आपको, अच्छा, ये सेल रजिस्टर को कॉलमनर रिपोर्ट में लेके हम करेंगे क्या? कोई बता सकता है क्या मुझे? हाउ इट कैन बी यूज्ड? सेल रजिस्टर को कॉलमनर रिपोर्ट में लेके हम क्या कर सकते हैं? हाउ इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑडिट पर्पस? कोई बता सकता है क्या मुझे? चलो, आई एम वेटिंग फॉर योर चैट, एंड इफ यू विश आई कैन अनम्यूट यू ऑल्सो, यू कैन टॉक टू मी. चलो, चैट्स आ रहे हैं मुझे. हाँ, चेक टैक्स कैलकुलेशन, क्या बात है प्रतीक, बहुत बढ़िया. हाँ, बहुत बढ़िया कीर्ति कुमार सर. टोटल आउटपुट जीएसटी, चेक जीएसटी रेट, एक्सलेंट, बहुत बढ़िया. राजश्री पंतपलिया, विदित अग्रवाल, वी कैन गेट जीएसटी डिटेल्स. यस, एब्सोल्युटली राइट. अब मान के चलते हैं आपके अकाउंटिंग में 10,000 सेल्स बिल बने हैं और 5%, 12%, 18%, 28%, ये सारे के सारे रेट वहां पे है. अब आपको ये चेक करना है कि 10,000 सेल्स बिल में कहीं जीएसटी का कैलकुलेशन तो गलत नहीं है, कहीं जीएसटी तो गलत नहीं कैलकुलेट हुआ. तो ये 10,000 सेल्स वाउचर चेक करने के लिए आपको 10 मिनट का भी समय नहीं लगेगा. 2, 3, 4 मिनट बहुत हो गया तो 5 मिनट. 5 मिनट में आप 10,000 ट्रांजैक्शन हो या 50,000 ट्रांजैक्शन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप 50,000 ट्रांजैक्शन को भी 5 मिनट में चेक कर सकते हैं. इसको आप रिपोर्ट को एक्सपोर्ट टू एक्सेल किए. हाँ, ऑल टाइप रेट्स जीएसटी इन सिंगल रिपोर्ट, बहुत बढ़िया. तो आपके जितने भी सेल्स के ट्रांजैक्शन है, हर ट्रांजैक्शन में जीएसटी का रेट बराबर है क्या? आप पूरा का पूरा डेटा एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर दीजिए, वहां पे फॉर्मूला लगा दीजिए. फॉर्मूला लगाने के बाद बेसिक वैल्यू और जीएसटी का अमाउंट, इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज का. परसेंटेज का फॉर्मूला लगाने के बाद आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कहीं परसेंटेज की गलती हो रही है क्या. तो सीजीएसटी और एसजीएसटी के जो रेट है वो सही परसेंटेज में आने चाहिए. तो 10,000 ट्रांजैक्शन आप बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं. यू कैन चेक इट वेरी इजीली. सो कॉलमनर रिपोर्ट इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन एनालाइजिंग द डेटा. लार्ज साइज डेटा को आप एनालाइजिंग बहुत बड़े आसानी से कर सकते हैं. New column, auto column, this has been discussed by Nivedita, but still let me discuss it with you to some extent. You can always use new column and auto column very easily. Now I am going to give you a different dimension of this new column or auto column. अब ये न्यू कॉलम ऑटो कॉलम का, आप ऑटो कॉलम तो खैर मैं आपको बता देता हूँ, ऑटो कॉलम में कोई खास बात नहीं है. यहाँ पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया, यहाँ पे मैं ऑटो कॉलम में जाता हूँ और मुझे क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए तो मैं क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे ले सकता हूँ. ये मेरे लिए बहुत आसान है. आप लोगों ने ये किया भी होगा, ये आपको पता भी होगा. तो आपको कंपेयर करना है कि पहले क्वार्टर में पोजीशन क्या थी, सेकंड क्वार्टर में क्या थी, थर्ड क्वार्टर में क्या थी, फोर्थ क्वार्टर में क्या थी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है. तो ऑडिट के लिए ये पॉइंट बहुत आसान है, बहुत सीधा पॉइंट है. ऑटो कॉलम में बहुत सारे ऑप्शंस है. 4 वीक्स अ मंथ, डेली, फोर्टनाइटली, हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, स्टॉक वैल्यूएशन मेथड्स, वीकली एंड ईयरली. व्हाट इज दिस स्टॉक वैल्यूएशन मेथड? आई एम प्रेसिंग एंटर. लेट अस सी. अगर आप वैल्यूएशन मेथड चेंज करते हैं तो आपके प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, यहाँ पे टैली आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा है. वो सिलसिला में एक अमिताभ बच्चन का गाना है, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, तुम इस बात पे कितनी हंसती, तुम उस बात पे कितनी हैरा होती. ये वही फीचर है. अगर फीफो मेथड होता तो प्रॉफिट कितना होता, अगर लीफो लेते तो कितना होता, अगर लीफो एनुअल लेंगे तो कितना, लीफो परपेचुअल लेंगे तो कितना, स्टैंडर्ड कॉस्ट लेंगे तो कितना. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप वैल्यूएशन मेथड चेंज करते हैं तो आपके प्रॉफिट के ऊपर क्या असर आ रहा.
other things remaining the same, the impact of profit ड्यू टू चेंज इन वैल्यूएशन मेथड। यहाँ पे देखिए 487, 520, 495, 493, यहाँ पे 14 लाख दिख रहा है। यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर लेते हैं हम तो यहाँ पे 14 लाख रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जब आप ऑडिट कर रहे हैं तो वहां पे क्लाइंट ने स्टॉक वैल्यूएशन मेथड मगर सेट करने में गड़बड़ कर दिया, तो ये स्टॉक वैल्यूएशन मेथड सेटिंग के गड़बड़ की वजह से बेवजह ज्यादा प्रॉफिट दिख सकता है, बेवजह ज्यादा इनकम टैक्स भरा जा सकता है, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि प्रॉफिट कम हो गया है, गलती से हमने गलत अमाउंट के ऊपर टैक्स भर दिया, कम टैक्स भर दिया। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर। So weekly and yearly these options are also available. Now let me show you something special. Let us go to display more reports. Let us go to accounts book. Let us go to ledger and let us open a particular ledger. Indian Overseas Bank CC account. This is a ledger. अब ये जो लेजर है इसके साथ में अगर आपको दूसरे किसी लेजर को कंपेयर करना है तो वो आप कर सकते हैं क्या? तो वो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे लेट अस गो टू डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, लेट अस गो टू ट्रायल बैलेंस एंड लेट अस, ठीक है, बैंक के बदले हम एक काम करते हैं, हम करंट एसेट्स में जाते हैं। लेट अस गो टू करंट एसेट्स, गो टू सन्ड्री डेटर्स और हमें दो डेटर्स को कंपेयर करना है। तो दो डेटर्स को कंपेयर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, अब यहाँ पे ये है, एक काम करते हैं, चलो ये है सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स के अंदर मैं चला गया और यहाँ पे जाने के बाद में मैं यहाँ पे हाँ प्रेस कर रहा हूँ न्यू कॉलम। आई एम क्लिकिंग ऑन दिस न्यू कॉलम और यहाँ पे सन्ड्री डेटर के बदले मैं ले रहा हूं यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स। इफ आई वांट टू कंपेयर, दिस इज hypothetical comparison, you may not require such type of comparison, but this type of feature facility is available with us in Tally. You can compare any group with any group, any ledger with any ledger. तो ये comparison आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डेटर्स के लेजर है और ये क्रेडिटर्स के लेजर है यहाँ पे। तो यू आर कंपेयरिंग डेटर लेजर विथ क्रेडिटर लेजर। यू कैन कंपेयर वन बैंक लेजर विथ अनदर लेजर। यू कैन कंपेयर वन लोन विथ अनदर लोन. You can compare one fixed asset group with another fixed asset group. So this is also one of the way of looking at the data at one place only. You need not press escape and you need not generate that report again. तो एक ही नजर में आपको यहाँ पे सारी चीजें ध्यान में आ जाएगी और एक ही नजर में आप इसे देख सकते हैं। इसका कोई और उपयोग आपके दिमाग में आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो मुझे बताइए। How you can use this feature? Just let me know how you can use this feature. कुछ आइडियाज आपके दिमाग में आ रही है क्या? मैं जानता हूं यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सुपर क्रिएटिव लोग हैं, बहुत सारी आइडियाज आपके दिमाग में आ सकती है। तो ये मैंने आपको इसके पहले भी कहा था, नोइंग अ फीचर इज समथिंग डिफरेंट एंड यूजिंग अ फीचर इज समथिंग डिफरेंट। कोरिलेशन बिटवीन सेल्स एंड इंसेंटिव्स, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। हाँ, ये आप लिंक कर सकते हैं। देखिए अब इन्होंने प्रैक्टिकली शायद ऐसा कुछ फेस किया होगा, कोरिलेशन बिटवीन सेल्स एंड इंसेंटिव, कि हमारा सेल कितना है और हमारा इंसेंटिव का खर्चा कितना है। बहुत बढ़िया। एक्सपेंसेस एनालिसिस कर सकते हैं आप कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, इसका कंपैरिजन हो सकता है, या ऑफिस एक्सपेंसेस और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा कुछ कंपैरिजन आप कर सकते हैं। इनकम एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस, बहुत बढ़िया। कि डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, जैसे यहाँ पे बता दिया कि कोरिलेशन बिटवीन सेल्स एंड इंसेंटिव, तो ये इनकम है और ये जैसे मार्केटिंग एक्सपेंसेस एंड सेल्स, इसका भी आप रिलेशन कर सकते हैं। सीजीएसटी वर्सेस एसजीएसटी, यस एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। ये भी हो सकता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी तो सेम ही रहना चाहिए, अगर अलग अलग आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। बहुत बढ़िया। परचेस आइटम, यस। सो this is a feature. Knowing a feature is one thing and utilizing a feature is another thing. तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल अपने लेवल पे यूज कर सकते हैं। भूलने के पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ यहाँ पे। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग को बता देता हूँ यहाँ पे, I am having one YouTube channel where I
upload such type of videos. So many videos are there. उसका लिंक मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है. आप एक बार सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करके वीडियो स्टार्ट कीजिए, चैनल आपको मिल जाएगा. चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वापस इस सेशन में आ जाना. And as soon as you subscribe, just type done in the chat box so that I could know. यहाँ पे आपके लिए और आपके स्टाफ के लिए, मेजोरिटी वीडियोस तो आपके स्टाफ के लिए, लेकिन आपको भी अगर इंटरेस्ट होगा तो बहुत सारी चीजें आप नहीं सीख सकते. दिस इज माय ओन चैनल. आई हैव अपलोडेड 125 वीडियोस ऑन दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल. तो यहाँ पे आप क्लिक करके एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए. तो न्यू कॉलम, ऑटो कॉलम हम बात कर रहे थे. तो न्यू कॉलम और ऑटो कॉलम, ये दोनों फीचर मैंने आपको बता दिए. यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं एक लेजर को दूसरे लेजर के साथ, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ में. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट फीचर, ग्रुप वाउचर्स. दिस इज अगेन अ वेरी लेस नोन, this is again a very less known feature of Tally. Many people do not know about this particular feature. Group vouchers, ये होता क्या है ये पता ही नहीं लोगों को, और इसका भी बहुत बढ़िया तरीके से उपयोग हम कर सकते हैं. तो बढ़िया तरीके से उपयोग हम कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ. चलिए, ये है कहाँ पे. आई एम कमिंग टू गेटवे ऑफ Tally स्क्रीन. गेटवे ऑफ Tally पे ऊपर आने के बाद यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डिस्प्ले. डिस्प्ले करने के बाद अकाउंट बुक्स, और अकाउंट बुक्स में जाने के बाद यहाँ पे एक है ग्रुप वाउचर्स. व्हाट इज दिस ग्रुप वाउचर्स. ये ग्रुप वाउचर्स में होता क्या है. फॉर एग्जांपल देयर आर 28 ग्रुप्स इन टैली. बाय डिफॉल्ट व्हेनेवर यू क्रिएट अ टैली कंपनी देयर आर 28 ग्रुप्स इन टैली कंपनी. तो ये 28 के बाद में आपको जितने चाहिए उतने आप ग्रुप बना सकते हैं. जैसे आपने सन्ड्री डेटर नाम का एक ग्रुप है टैली में, तो सन्ड्री डेटर्स के अंदर आप अपने लेवल पे अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल नॉर्थ डेटर्स, साउथ डेटर्स, ईस्ट डेटर्स, वेस्ट डेटर्स. अब नॉर्थ डेटर में भी आप अलग अलग स्टेट वाइज ग्रुप बना सकते हैं, जैसे दिल्ली डेटर्स, पंजाब डेटर्स, हरियाणा डेटर्स, जम्मू कश्मीर डेटर्स, हिमाचल प्रदेश डेटर्स. तो ऐसे बना सकते हैं. और उसके बाद में आप हर स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटर्स के ग्रुप बना सकते हैं. पंजाब में भटिंडा डेटर्स, अमृतसर डेटर्स, पटियाला डेटर्स. तो ऐसे अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं, और उसमें अल्टीमेटली आपका लेजर रहेगा. तो मैं ये एंगल से सोच रहा हूं कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा है और पूरे देश में, हर देश के हर राज्य में, हर जिले में आपका माल जा रहा है, वहां पे आपका कस्टमर है. तो अगर ऐसी स्थिति है तो आपके लिए ये ग्रुप वाउचर्स जो है वो बहुत ही काम में आने वाली चीज है. और अगर ऐसी स्थिति नहीं भी है तो भी ये आपके बहुत काम में आएगा, ग्रुप वाउचर्स. अब ये काम में कैसे आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे मैं कर रहा हूँ indirect expenses. I am selecting the default group in Tally, that is indirect expenses. ये indirect expenses नाम का एक default group है, उसको मैंने select कर लिया. अब ये ग्रुप वाउचर्स में Tally ने क्या किया है ये आपको बताता हूं मैं. Tally ने क्या किया यहाँ पे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम से जो ग्रुप टैली में है उसमें जितने भी लेजर्स बने हैं उस लेजर में जो भी डेबिट क्रेडिट हुआ है सबको एक साथ दिखा दिया. आई एम रिपीटिंग, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जितने भी लेजर्स बने हैं, फॉर एग्जांपल देयर में भी टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, उसमें हो सकता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कन्वेंस, राइट ऑफ, डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट रिसीव्ड तो नहीं होगा, डिस्काउंट गिवन ही होगा. तो ऐसे कई सारे, सैलरी हो सकता है, रेंट हो सकता है. तो ये ऐसे कई सारे एक्सपेंसेस के लेजर्स आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बने होते हैं. और ये सारे के सारे एक्सपेंसेस लेजर में जितने भी ट्रांजैक्शन है, मे इट बी अ डेबिट ट्रांजैक्शन, मे इट बी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, टैली हैज कंबाइंड ऑल दीज ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस. अब इसका उपयोग कैसे करना आप मुझे बताओ. चलो, मैंने आपको आधा फीचर बता दिया, अब मैं आपसे थोड़ा सा सीखूंगा इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं. ऑडिट एंगल से सोचिए. ऑल ऑफ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, सुपर क्रिएटिव ब्रेन्स. टीडीएस एप्लीकेबिलिटी, यस. कौन से ट्रांजैक्शन को टीडीएस एप्लीकेबल है नहीं है ये आप चेक कर सकते हैं. बहुत बढ़िया. सीए प्रतीक सरडा. आगे और I am waiting for your reply. $51 participants are there. उसमें से 2 छोड़ दो,
मैं हूं निवेदिता है। 49 पार्टिसिपेंट तो है, कम से कम तो 49 यहाँ पे रिप्लाईज आने चाहिए, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। कृष्णा अग्रवाल जीएसटी क्रेडिट, ठीक है, बहुत बढ़िया। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, पेमेंट एक्सीडिंग ₹10,000, यस वेरी गुड, ये भी हो सकता है। क्यूमुलेटिव सेल्स फॉर ऑल प्रोडक्ट, क्रेडिट बैलेंस इन एक्सपेंस अकाउंट, नहीं। आदिश अग्रवाल जी, ये जो चीज है क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे कहीं बैलेंस हमें नहीं दिख रहा है। ये जो पॉइंट है आपका, ये रिलेवेंट पॉइंट है, लेकिन ये जो चीज है वो ट्रायल बैलेंस में काम आएगा, जहां पे मैंने डिटेल ट्रायल बैलेंस के बारे में आपको बताया था कि डिटेल ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस अकाउंट में, एक्सपेंस लेजर में क्रेडिट बैलेंस है क्या, वो आपको वहां पे पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको पॉइंट बताया था, वही पॉइंट आपको मैं फिर से बता रहा हूँ इस पर्टिकुलर एंगल से। वही पॉइंट, एक सेशन मैंने अटेंड किया था ऑडिटिंग के ऊपर, नागपुर में एक वेबिनार हुआ था, सेमिनार हुआ था, वेबिनार नहीं, अभी आजकल मुंह में वेबिनार ही आता है। एक सेमिनार हुआ था, फिजिकल सेमिनार, 7-8 साल पहले की बात है। वहां पे एक मुंबई से सीए आए थे, और वो एल में, एल जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, वहां पे इंटरनल ऑडिटर थे, और वो कई सालों से वहां पे, लगभग 20 साल से इंटरनल ऑडिटर थे। और एल के इंटरनल ऑडिट में उनके जो भी एक्सपीरियंसेस थे, उन्होंने मुझसे, मतलब सभी के साथ शेयर किए सेमिनार में। तो उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वही बात मैं आपको यहाँ पे आज बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि ऑडिट करने के लिए आपको कोई बहुत दिमाग की जरूरत नहीं है, बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और आपके पास दिमाग है नहीं है, ज्ञान है नहीं है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको अगर ऑडिट करना है तो आप सिर्फ एक ही काम करना, वो एक ही काम इतना करना कि क्या है, सवाल पूछो। पहले अपने आप से सवाल पूछो, फिर दूसरे से सवाल पूछो। मतलब जिसका ऑडिट कर रहे हैं आप, उसके साथ उसको सवाल पूछो। तो जितने हो सके उतने सवाल पूछते जाओ, और जब आप सवाल पूछते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर होते जाएगी। जो पॉइंट आपके ध्यान में नहीं आ रहा है, वो आपको ध्यान में आते जाएगा। तो अब सवाल पूछना मतलब क्या, उन्होंने ये भी बताया कि अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही एकदम बचकाना सवाल है, इट इज अ सिली क्वेश्चन, स्टिल आल्सो आस्क दैट क्वेश्चन टू योरसेल्फ। पहले अपने आप को पूछना। तो अब सवाल पूछना ये ऑडिट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कौन से सवाल हम पूछ सकते हैं, ये मैं आपको ग्रुप दिखा रहा हूं। यहाँ पे ग्रुप में क्या है, ग्रुप में है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब मुझे सवाल पूछने हैं, तो मैं क्या क्या सवाल पूछूं, ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं अभी। चलो, आप सवाल पूछो, हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। Just type the questions in the chat box. We will try to find out the answers. L&T के इंटरनल ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बताया था क्रेडिट बैलेंस इन एक्सपेंस अकाउंट, नहीं सॉरी, ये तो हो गया था। हाँ चलो, सवाल एकदम सिली क्वेश्चन पूछना। फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप वाले का सवाल रहा तो भी चलेगा। आर देयर एनी डाइवर्जेंट ट्रेंड्स बिटवीन टू एक्सपेंसेस, ठीक है। ये थोड़े से ऊपर के लेवल का सवाल हो गया सर, आपने आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से पूछा। अब मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एकदम बेसिक सवाल पूछता हूँ अपने आप को। आपका सवाल बिल्कुल सही है कीर्ति सर। अब मेरा सवाल ये है कि सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर कौन सा है, ये मुझे जानना है ना। ये टैली में, अदरवाइज आपको कहीं रिपोर्ट में मिलेगा ही नहीं है कि ये अकाउंटिंग में सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर का ट्रांजैक्शन कौन सा है। हाउ कम परचेस वाउचर कम इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। परचेस वाउचर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैसे आ रहा, अगर आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की एंट्री जीएसटी के साथ करेंगे तो इट इज सजेस्टेड to use purchase voucher, because in case of purchase voucher GST is calculated automatically. If you are using it under journal voucher, GST will not be calculated automatically and you may commit a mistake in GST calculation. तो ये मेरा सजेशन है आपको। अभी आपने ये सवाल पूछ लिया, देखिए हम बात कर रहे थे सवाल पूछने के बारे में, तो आपने एकदम बेसिक सवाल पूछ लिया जो कि लग रहा था बचकाना सवाल है, लेकिन वो ऑडिटर की बात मैं आपको फिर से बताता हूँ। उन्होंने तब वेबिनार सेमिनार में यही कहा था कि जितने बेसिक लेवल के सवाल आप अपने आप से पूछेंगे, उतना ज्यादा गहराई में आप जा सकते हैं, उतनी नई नई चीजें, विस्फोटक चीजें, तहलका करने वाली चीजें आप ऑडिट में से ढूंढ के निकाल सकते हैं। सो ट्राई टू आस्क वेरी बेसिक क्वेश्चंस। तो आपका ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल था कि परचेस वाउचर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में कैसे आ रहा, इसको हम ओपन करके देखते लेते। चलिए, आपने पूछ लिया तो यहाँ पे देखिए
ये इन्फोफ्लेक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जी सूट, ये गूगल का अकाउंट है, गूगल का जो ईमेल है उसके चार्जेस है ये, तो गूगल के ईमेल के चार्जेस है उसके ऊपर जीएसटी लग रहा। दिस इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जीमेल का जो खर्चा है हमारा, पेड ईमेल है ये, जीमेल का फ्री ईमेल नहीं है, तो जीमेल का जो पेड ईमेल है उसके चार्जेस है और उसके चार्जेस के ऊपर आईजीएसटी लग रहा है। तो सिस्टम हमारे क्लाइंट्स के यहाँ पे, मैं सारे जगह पे ये सिस्टम इंप्लीमेंट करता हूँ कि जहां पे भी आप जीएसटी वाले एक्सपेंडिचर बुक करेंगे तो वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर आपके परचेस वाउचर में ही होने चाहिए। एक भी वाउचर आप जर्नल में एंट्री करना नहीं, एक भी ट्रांजैक्शन जहां पे जीएसटी है वो जर्नल में रिकॉर्ड करना नहीं, क्योंकि जर्नल में आप रिकॉर्ड करेंगे तो वहां पे जीएसटी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक नहीं होता है। तो ये सवाल की हमने चर्चा कर लिए। अब मेरे दिमाग में जो सवाल था कि सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर का ट्रांजैक्शन कौन सा है, मतलब ये कंपनी में जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने किया F12 और F12 करने के बाद वही काम मैं करूंगा जो मैंने डे बुक में किया था, नया कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बड़ी चीजें, बहुत रॉकेट साइंस मैं आपको टैली में नहीं बता रहा हूँ। ये पॉइंट आप भूल सकते हैं, इसलिए मेरा सजेशन है कि इसको लिख ले। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, हाँ, सॉर्टिंग मेथड में जा रहा हूं मैं, और सॉर्टिंग मेथड में अमाउंट डिक्रीजिंग में जाता हूं मैं। अमाउंट डिक्रीजिंग में जब मैं जाता हूं तो मुझे ऊपर, सबसे ऊपर मिलेगा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। सो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन दिस केस फॉर द मंथ ऑफ मार्च ओनली, ये सिर्फ मार्च है क्या, 31 मार्च, 1 मार्च से 30 मार्च है, तो यहाँ पे मैं अप्रैल टू मार्च लेता हूँ। तो अप्रैल टू मार्च लेने के बाद में मुझे यहाँ पे पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन मिल जाएंगे। सबसे बड़े अमाउंट का एक्सपेंडिचर कौन सा है, सो 91,000 इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके बाद में सबसे छोटा जो अमाउंट है वो कितना है वो भी देख लेते हैं। सबसे छोटा अमाउंट है 1 पैसा। तो ये तो राउंड ऑफ वाला मैटर दिख रहा मुझे, राउंड ऑफ, इसे मैं ओपन करके देखता हूं तो ये राउंड ऑफ ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। नाउ यू कैन फोकस, अब आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ पे वेटेज ज्यादा देना है, कहाँ पे ध्यान ज्यादा देना है, कौन से खर्चे आपके लिए जरूरी है, कौन से खर्चे के ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा। ये 17 पैसे, 5 पैसे, 3 पैसे क्या देखना, छोड़ दो इसको। हम 10,000 के ऊपर के ही वाउचर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर के वाउचर दिख रहा है। अब आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि कैश ट्रांजैक्शन कितने हैं हमारे, कैश में खर्चे कितने हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम प्रेसिंग F12 एंड आफ्टर प्रेसिंग F12 आई एम इसको मैं लेता हूं अल्फाबेटिकल A to Z। यहाँ पे मैंने कर दिया एंटर अल्फाबेटिकल A to Z। अब आपको यहाँ पे लेजर वाइज सारे एक्सपेंसेस मिल रहे हैं, लेजर वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेजर वाइज सारे खर्चे आ रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अब इसमें आप बहुत सारी अपने लेवल पे कलाकारी कर सकते हैं। 10,000 के ऊपर के कैश के ट्रांजैक्शन, या फिर 5,000 के नीचे के कैश के ट्रांजैक्शन, 1 लाख रुपए के ऊपर के, 1 लाख रुपए के नीचे के, 1 लाख से 2 लाख के बीच में, ये सारी कलाकारी आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू नो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फीचर। अब इसका एक मैं और जबरदस्त यूज आपको बताता हूं। ये यूज ऐसा है कि ये बहुत कम लोगों को पता है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमें बहुत बार डेटर या क्रेडिटर का रिकंसिलिएशन हमें करना होता है जब हम ऑडिट करते हैं, तो वी नीड टू रिकंसाइल डेटर्स और क्रेडिटर्स एट द टाइम ऑफ ऑडिट। एंड इन सम केसेस कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका सप्लायर है रेमंड, आप रेमंड का ऑथोराइज शोरूम चला रहे हैं और आपका सप्लायर है रेमंड, और रेमंड आपको माल भेज रहा है अलग अलग लोकेशन से। मतलब रेमंड की एक फैक्ट्री है एमपी में छिंदवाड़ा में, दूसरी फैक्ट्री है आंध्र प्रदेश में, तीसरी फैक्ट्री है ओडिशा में, चौथी फैक्ट्री है गुजरात में, और चारों फैक्ट्री से आपको माल आ रहा है। अब ये चारों फैक्ट्री से जब आपको माल आएगा तो नेचुरली चारों के जीएसटी नंबर अलग अलग होंगे, और हो सकता है ना महाराष्ट्र में भी कोई फैक्ट्री है वहां से भी आपको माल आ रहा है। सो इन दैट केस देयर मे बी डिफरेंट जीएसटी नंबर्स बिकॉज स्टेट्स आर चेंजिंग। So you will be creating 4 different ledgers for the same company Raymond Limited. Why? Because GST numbers are different. There may be CGST, SGST or IGST. But at the time of making payment, you might be making payment
to head office only that is situated in Mumbai. Now, how to reconcile? At the time of getting ledgers from parties, they may be sending you the ledgers according to their own way, that is state, and you are making payment to one single party that is different from these four parties. उस केस में आप ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज आपको रिकंसिलिएशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये काम कर सकते हैं, आप रेमंड लिमिटेड नाम का एक ग्रुप बनाइए और उसके अंडर आपके जितने भी रेमंड के लेजर है उसको आप वहां पे डाल दीजिए, प्लेस कर दीजिए, और उसके बाद फिर आप ग्रुप वाउचर्स में आइए और वहां पे ग्रुप वाउचर्स में आने के बाद आप लीजिए रेमंड लिमिटेड। तो रेमंड लिमिटेड में जितने भी ट्रांजैक्शन उसके अंडर के जितने भी लेजर्स है उसमें हुए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे, और उसके बाद आपके लिए रिकंसिलिएशन करना, बैलेंस चेक करना, ये सारी चीजें आसान हो जाएगी। इज इट क्लियर? समझा गया ये पॉइंट? यस और नो? इज इट क्लियर? चलिए, कीर्ति सर थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये जो चीज मैंने आपको अभी बताया, ये फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कुछ नया था क्या आपके लिए? इज इट यूजफुल? ये जो पॉइंट अभी मैंने आपको बताया, इज इट यूजफुल? जस्ट टाइप यूजफुल इफ यू फील दैट इट इज यूजफुल। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हमें ऑडिट करते समय बहुत सारी आती है, और ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, यस थैंक यू कीर्ति सर, ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज का सॉल्यूशन देने के लिए ही इस तरह के प्रोग्राम्स हमारी इंस्टीट्यूट अरेंज करती है। और मेरा ये मानना है, खुद का पर्सनली ये मानना है कि जब भी हम कोई लेक्चर में जाते हैं तो हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस वहां पे मिलने चाहिए। जो चीज किताबों में लिखी है वही अगर फिर से मैं आपको बता दूं पढ़ के, तो फिर मैंने जो अभी तक काम किया उसका क्या मतलब है, उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। तो किताब तो आप भी पढ़ सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी पढ़ सकता हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, जहाँ पे आपका काम घंटों का काम मिनटों में हो सकता है, वो इस तरह की चीजें सेमिनार्स में, वेबिनार्स में मिलनी चाहिए, मेरा खुद का मानना है। और मैं भी हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि इसी तरह के कुछ पॉइंट्स मैं आपको हमेशा बता सकूं। सो दिस इज हाउ यू कैन reconcile variety of ledgers which are placed under one particular group. चलिए हम बढ़ते आगे। ग्रुप वाउचर्स भी हमारा डिस्कस हो गया। उसके बाद रेंज वैल्यू, ये जो फीचर है ये आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक बार इसका डिस्कशन भी करना जरूरी है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मुझे अगर देखना है कि 5,000 रुपए के ऊपर के खर्चे कौन से, या 10,000 की बात करते हैं हम, चलिए तो 10,000 की बात करने के लिए अल्टर और F12 मैंने यहाँ पे दबाया। दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक है अल्टर F12 और एक है कंट्रोल F12। तो दोनों में आप जा सकते हैं। वाउचर हैविंग लेजर अमाउंट ग्रेटर देन 10,000, तो वाउचर हैविंग लेजर अमाउंट ग्रेटर देन 10,000, इसके साथ आपको मल्टीपल कंडीशंस लगाना है तो मल्टीपल कंडीशन भी आप लगा सकते हैं। मल्टीपल कंडीशन नहीं लगाना है, सिंगल कंडीशन के साथ भी आप काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप यहाँ पे देखिए कि वाउचर्स हैविंग लेजर अमाउंट ग्रेटर देन ₹10,000, ये फिल्टर होके हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे कुछ स्ट्रेंज चीज, अजीब चीज आप देख रहे हैं क्या? Are you able to view something strange? We have set the condition as voucher. All these vouchers are expense vouchers. तो ये सारे के सारे expense voucher है और हम देख रहे हैं 10,000 के ऊपर के voucher। लेकिन strange चीज क्या है? कुछ दिख रहा है कि आपको something objectionable? सेल्स वाउचर कहाँ पे दिख रहा है? सेल्स वाउचर, यस सेल्स टीएम आ गया यहाँ पे। सेल्स टीएम क्यों आ गया यहाँ पे? क्योंकि सेल्स में एक्सपेंसेस का कोई लेजर आया है इसलिए आ गया। हम बात वो नहीं कर रहे। स्ट्रेंज वाउचर मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो ना 46 पैसा, 1 पैसा, 80 पैसे, 56 पैसे, ये क्यों दिख रहा है यहाँ पे? अमाउंट लेस देन है, लेस देन लिया कि ग्रेटर देन लिया मैंने? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं अल्टर F12 से। हाँ,
ग्रेटर देन ही है प्रतीक, ये लेस देन नहीं लिया मैंने, लेकिन मैंने ग्रेटर देन लेने के बाद भी ये 40 पैसे, 1 पैसा, 2 पैसा क्यों आ रहा है? ये क्यों आ रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे हम फॉर एग्जांपल इस 1 पैसा में गए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 पैसा है इसलिए वो ले लिया उसने, लेकिन वाउचर की जो टोटल है, फाइनल टोटल, वो 30,000 रुपए है, मतलब 10,000 से ज्यादा है। So Tally has considered the vouchers where the total amount is greater than rupees 10,000, but it is displayed as 0.1 पैसे, क्योंकि उसमें से एक लेजर इसने उठा के दिखा दिया। ये जो 1 पैसा है ये वो पर्टिकुलर लेजर का है, तो इसके ऊपर आपको फिलहाल ध्यान नहीं देना है फिलहाल। तो ये जो 1 पैसा है वो उसके अंदर का एक लेजर का पार्ट है, कोई भी एक लेजर हो सकता है, बट इट इज अ वाउचर with amount more than rupees 10,000. So similarly you can do so many things with this alter F12 and control F12 voucher having। एक और काम करते हैं, नरेशन एज एम्प्टी। ऐसे कौन से वाउचर है जिसमें नरेशन लिखा ही नहीं है? हम हमेशा अकाउंटेंट्स को बोलते हैं, हमारे स्टाफ को बोलते हैं कि आप नरेशन लिखो, तरीके से लिखो, बट देयर माइट बी सर्टन अकाउंटेंट्स और सर्टन स्टाफ मेंबर्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड और लीस्ट बॉदर्ड अबाउट टाइपिंग नरेशंस. So we can identify such vouchers very easily, and we are identifying these vouchers under one particular group, that is indirect expenses. Logically we should do it in daybook report, because daybook is a report where all the transactions will be displayed. तो यहाँ पे एक्सपेंसेस के लेजर में ऐसे कितने ट्रांजैक्शन है एक्सपेंसेस में जहाँ पे आपका नरेशन लिखा नहीं है? तो यहाँ पे हम जाएंगे, नरेशन क्यों नहीं लिखा है, यहाँ पे एंटर करके देखते हैं, यहाँ पे नरेशन है ही नहीं, देयर इज नो नरेशन। यू कैन फाइंड आउट सर्टन वाउचर्स विथ नरेशन, पर्टिकुलर नरेशन के साथ में। फॉर एग्जांपल, हाँ, नरेशन यहाँ पे मैं करता हूँ कंटेनिंग लेट अस से कैश, तो कैश जहां पे लिखा है ऐसे नरेशन कहीं है क्या? अगर है तो टैली मुझे ढूंढ के दिखा देगा। ये ट्रांजैक्शन ऐसे है जहां पे लिखा है कैश, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीइंग कैश विड्रॉल फॉर सेटलमेंट वगैरह वगैरह कुछ लिखा है। तो ऐसे जितने भी ट्रांजैक्शन है हमारे वो कैश के अलग आ जाएंगे। यहाँ पे एक और शॉर्टकट की आपको मैं बता देता हूँ, शिफ्ट एंटर इज द शॉर्टकट की टू चेक द नरेशन ऑफ वाउचर देयर इटसेल्फ। आपको एंटर करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे नरेशन आ जाएगा। शिफ्ट एंटर इज द शॉर्टकट की। So you can do miracles while auditing, provided you know how to use the feature. Knowing a feature is one thing, using a feature is another thing. तो आपके पास अगर ये यूजिंग वाली कला है तो आप बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से कर सकते हैं। 100% डेटा का आप ऑडिट बहुत आसानी से कर सकते हैं। Now let us do one more thing. I am pressing Alt F12 again. हाँ, वाउचर हैविंग। अब यहाँ पे ऑप्शंस कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शंस कौन कौन से है। यहाँ पे देखिए वाउचर हैविंग्स, व्हाट यू कैन डू विद दिस फिल्टर सिस्टम अल्टर F12। यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी, अटेंडेंस टाइप, बैच नेम, बिल्ड क्वांटिटी, बिल नेम, बायर नेम, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, डेट, एम्प्लॉइज अटेंडेंस एंट्रीज, एक्साइज बुक नेम, एक्साइज सीरियल नंबर, फेवरिंग नेम, गोडाउन नेम। यहाँ पे हाँ, इंस्ट्रूमेंट डेट, इंस्ट्रूमेंट अमाउंट, इंस्ट्रूमेंट नंबर, इज इनवॉइस, ये इतने सारे अलग 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 ऑप्शन दिए यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ये पर्टिकुलर फीचर को यूज करके हजारों कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, हजारों कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ ये लेजर अमाउंट, तो यहाँ पे एज क्रेडिट अमाउंट, एज डेबिट अमाउंट, एज नॉन जीरो, एज जीरो, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेसर देन, नॉट इक्वल टू, ये कई सारे ऑप्शन है। अब यहाँ पे अगर मैं ये चेंज कर देता हूँ, अब यहाँ पे मैं डेट लेता हूँ तो डेट में भी अलग अलग ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे मैं लेजर का नाम लेता हूँ, लेजर, तो लेजर में क्या आ रहा, एड्रेस, क्लोजिंग बैलेंस, ग्रुप नेम, मेलिंग नेम, नेम, ओपनिंग बैलेंस, टोटल क्रेडिट ट्रांजैक्शन, टोटल डेबिट ट्रांजैक्शन। सो यू हैव ह्यूज नंबर ऑफ ऑप्शंस अंडर ईच ऑप्शंस। तो ऐसा करके आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब आप करने जाएंगे तो हो सकता है 5-10 हजार परमुटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाए। सो फ्रेंड्स, it is around 7:20 now.
this was something from my side for all of you as far as this topic is concerned. Now, if you have any type of questions, I am ready to answer. I will try to answer your questions. Now the forum is open for question and answers. Jiten sir, are you there? Yes, sir. Due to some technical issue, Jiten sir cannot join. Okay. So it was a program for 2 hours, that is up to 7:30. So I am keeping some time extra Friends, for question and answers. Friends, I request if you have any query, kindly mention it in the chat box. I think Jiten sir has also joined. I request Jiten sir to kindly take over. Yeah. Yeah, thank you, Akshay. I have some issues with my my system, so I'm joined from my mobile. Yeah, if there are any queries, I think there is one query that has come up. Just a moment. Yeah, recording. Someone has requested. I think Swaroop has requested for recording. So yeah, definitely Swaroop will be putting the recording onto the ICI YouTube channel, Nagpur branch YouTube channel. Are there any specific queries related to today's session? In case there are, you can just unmute yourselves, or you can put it in the chat box as well. There is one query. Let me read it. Sales invoice with multiple tax rates, assessable value club, but GST shown separately, 5-12%, etc. HO to work out individual assessable values. How to होगा वो शायद. Kirti sir, is this a query? Sales invoice with multiple Yeah, okay. tax rates. So Assessable Pankaj sir, value the club. query says like this. It goes like this. I think you can see the query as well. Sales invoice with multiple tax, but GST shown separately, 5-12%, etc. So Pankaj sir, you're there? Yes, I am there. Just a moment. Am I audible clearly? Yes. No problem. Yeah. So I hope you have seen the query. Yes, I have seen the query. No problem. Let me answer this query on screen itself. Just a minute. Change mode. Other watch. Just a minute. एक कीर्ति सर जो आप पूछ रहे थे उसका सॉल्यूशन यहाँ पे टैली ईआरपी, आप टैली ईआरपी यूज कर रहे हैं कि प्राइम यूज कर रहे हैं? I guess it should be Tally ERP 9 if I'm not wrong. Rather both. He has written it both. ठीक है, तो टैली ERP 9 के लिए बता देता हूँ आपको मैं. टैली ERP 9 के लिए यहाँ पे एक बटन होता है अल्टर ए, टैक्स एनालिसिस. उसका बटन का नाम है अल्टर ए. यू कैन क्लिक दैट बटन और जैसे आप अल्टर ए प्रेस करेंगे तो वहां पे आपको टैक्स एनालिसिस मिल जाएगा. वहां पे एनालिसिस एसेसेबल वैल्यू इंडिविजुअली मिल जाएगी और उसके सामने जीएसटी भी लिखा होगा. और अगर हम प्राइम की बात करेंगे तो यहाँ से उन्होंने बटन वो हटा दिया है. अब मुझे भी थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा वो कहाँ पे डाला है बटन. यहाँ पे वो टैक्स एनालिसिस का बटन नहीं है उनका, कहीं तो भी अंदर डाला होगा. एक मिनट, या फिर मैं आपको कल देख के बता देता हूँ वो कहाँ पे है. तो अल्टर ए का बटन यहाँ पे बाहर तो नहीं दिख रहा मुझे. यस, उनको बोलना है. जस्ट अ मिनट, एक मिनट. हाँ, शो मोर. जस्ट अ मिनट. हाँ, यहाँ पे दिया मोर डिटेल्स में. इसके अंदर मार्क वाउचर नरेशन पार्टी.
नहीं, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा। पंकज सर, अगर हाँ। अभी दिक्कत जा रही है तो कल आप उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर पाए तो वैसा भी चलेगा। यस यस यस, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। जीएसटी रेट डिटेल्स, एक मिनट, वहां पे दिख रहा है उनको, सर को दिख गया, जो चाहिए था उनको वहां पे दिख रहा। हाँ राइट राइट, जीएसटी रेट डिटेल्स, उसके क्या है ERP 9 में नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, नहीं दिख रहा वो, मैं देख के बताता हूँ आपको कहाँ पे। तो क्योंकि क्या है, प्राइम में और ERP 9 में इन्होंने बहुत ऐसे छोटे छोटे चेंजेस किए, जो पहले जो सिस्टम थी वो पूरी चेंज कर दिया, कुछ ऑप्शंस हाइड कर दिए, कुछ ऑप्शंस बाहर लेके आ गए। यस हाँ सर Any other एक और question? हाँ, एक और क्वेरी है विच इज लाइक कि ट्रायल बैलेंस को डिटेल में जो ट्रायल बैलेंस जनरेट होता है ना हाँ, विद ऑल द मल्टीपल सब ग्रुप्स लेजर्स वगैरह, वो कैसे हो सकता है? डायरेक्ट हो सकता है क्या? इज देयर एनी फैसिलिटी, इज देयर एनी वे? वो डिटेल मतलब F12 करना है। यहाँ पे देखिए, ये डिस्प्ले में गया मैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे जाके F12 करना है आपको। F12 करने के बाद ये ओपनिंग बैलेंस यस, शो ट्रांजैक्शंस यस, और क्लोजिंग तो ऑलरेडी यस है। यहाँ पे हम कंट्रोल ही करेंगे तो डिटेल्ड हो गया। अब आपको और डिटेल करना है तो यहाँ पे आप अल्टर F1 क्लिक करेंगे और डिटेल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर ये जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर बहुत सारी चीजें छुपी होती है, लेजर्स छुपे होते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट होता नहीं है डिटेल में। तो एक और ऑप्शन है यहाँ पे, एक्सपांड ऑल लेवल्स इन डिटेल फॉर्मेट, इसको आपको करना पड़ेगा यस। ये यस करने के बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, देखिए अभी हो रहा है क्या? तो हाँ हाँ, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स अभी भी नहीं हुआ, इसको हम करेंगे एंटर। तो ये शिफ्ट एंटर करने के बाद अब ये पूरी तरह से डिटेल्ड हो गया, एक भी लेजर इसका छूटा नहीं है। राइट सर, आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेरी। या सीम्स सो। सर डेटर्स आल्सो नॉट डिफॉल्ट, डेटर्स के बारे डेटर्स में आल्सो नॉट डिफॉल्ट, यस डेटर भी वैसे ही है। हाँ हाँ, वो सजेशन है उनका, मतलब इंफॉर्मेशन है, क्वेरी नहीं है कि क्रेडिटर जो है वो बाय डिफॉल्ट एक्सपांड नहीं होते, डेटर्स भी वैसे एक्सपांड नहीं होते, तो डेटर को भी आपको एक्सपांड करना पड़ेगा इसी तरह से, जैसे मैंने क्रेडिटर को किया, डेटर्स को भी उनको, हाँ सन्ड्री डेटर्स में जाके मुझे, हाँ ये सन्ड्री डेटर शिफ्ट एंटर करके एक्सपांड करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, यस। हाँ सर फॉलो क्वेश्चन है उस पे कि F12 करने के बाद में भी और एक्सपैंड करने के बाद में भी नहीं हो रहा है पूरा, ऐसा है? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे डेटर क्रेडिटर ये है, ये नहीं होते हैं तो उसको आपको मैन्युअली शिफ्ट एंटर दबा के एक्सपांड करना पड़ेगा। राइट राइट राइट, उस तरह कोई तरीका नहीं है। ओके ओके। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट और लायबिलिटी कैलकुलेशन इज पॉसिबल इन टैली? सवाल है सर। नहीं, ये ऐसा कोई कैलकुलेशन टैली में अभी तो फिलहाल नहीं है, और आने की फिलहाल उम्मीद भी नहीं है। हाँ राइट राइट, या अभी कोई सवाल? यस, चलिए, तो पायल जी, आपके सवाल का जवाब हाँ है। आई हैव गिवन माय ईमेल एड्रेस टू यू, जस्ट ईमेल मी, आपकी जो जो रिक्वायरमेंट है आप मुझे ईमेल करवा दीजिए, मैं एक बार लगे तो आपको फिर से ईमेल यहाँ पे करवा देता हूँ। हाँ हाँ, आई थिंक पंकज सर कोई क्वेश्चंस अभी नहीं दिख रहे हैं मुझे, सो हम लोग कल इसको फिर कैरी फॉरवर्ड करें सेशन को और कंटिन्यू करें कल के दिन में। तो कल सर जो आप कवर करने वाले हैं, हाँ, थोड़ा सा आज बिल्कुल, उसके बारे में बता दीजिए कोई प्लीज। प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, in case you can just brief whatever you are going to cover tomorrow, that would be nice for the participants and they will be joining in better numbers also tomorrow. Yes, 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 definitely. We will be discussing about some audit features in Tally. Now, today we haven't discussed any specific audit feature. हमने in general feature की बात किया जिसको हम audit angle से use कर सकते हैं। कल हम specifically audit feature की बात करेंगे, जहाँ पे हम specifically audit feature जो Tally ने दिया है वो बात करेंगे, और भी कुछ छोटी चीजें हैं जो कि useful हो सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो कल का सेशन मिस मत करना। कल का सेशन अगर आप मिस करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, ऐसा मैं आपको अभी आज ही बता रहा हूँ। कल अगर आपका कोई असाइनमेंट होगा, कुछ काम होगा, तो उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। 5:30 से 7:30 ये आप बिल्कुल आइए यहाँ पे, और आपको मजा आएगा। जैसे आज आया वैसे कल और मजा आएगा आपको। राइट सर, सो थैंक यू सो मच सर। आई थिंक दैट वाज अ वंडरफुल सेशन। पंकज सर और मैडम का जो आज मैडम ने जो खास सेशन आज आके वहां से
She has joined right from Amalner. So it was very nice of you, madam, as well to join there. And I think it was a nice session. Let's meet tomorrow, friends, at the same time, that is 5:30 p.m. and continue with today's learning. Right, sir? Thank you so much. And we are signing off. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Thank you, madam. Yes, yes. Thank you.